Okay, so good afternoon to all the participants. And today we have Mr. Jaspreet Singh with us. He is the IPR expert and also the manager of the research team of the Verispire. And he has more than a decade experience in filing national international patents. And he will be appraising us that how to file the patent, how to get revenue out of the patents, what is the procedure, and how we can think of filing the patent. That is the most important thing, because we may have the number of ideas but we don't know that how to proceed with those ideas. So he will be helping us in this workshop. So welcome, Mr. Jaspreet, and Mr. Param Doshi is also there, and he is also dealing with IPRs. So now I request Mr. Jaspreet to start the session. Let's start with what is IPR. So we say that intellectual property right. What do you mean by intellectual property rights? होता क्या है basically? Let's that divide this term into three parts: intellectual property and rights. So what do you mean by intellectual? Intellectual is something creative, creation of an intellect. किसी की creation, कुछ inventive. And what do you mean by property? In a layman language, what do you mean by property? Property is something tangible, that this property belongs to me. Some property belongs to the IMT University. So property is something that is tangible, that is something belongs to you. No one can use it. So what we can do from, if we have a property, what we can do? We can rent it, we can sell it. So we can give it on lease also. So property is something tangible, and rights are basically claims, that you are claiming something, that this particular thing belongs to me. This laptop belongs to me. This article is written by me. I'm claiming something. So let's combine these three words: intellectual property rights. These are the creations that are the property of an inventor, and rights are given to the inventor or any individual. These are intangible rights uh, that are for the creations or the inventions or some brand name, maybe software codes. The rights given to an individual. It can be anything, to an individual or a company or a university or an university. I take examples of brand names, songs, literature, software codes. कुछ भी हो सकता है. What do you mean if I ask you? What do you mean by IP? IP होता क्या है? What is the basic term IP? Intellectual property. What is IP? If just everyone to see around yourself, what is IP? IP है क्या? The mobile phone you're using is a kind of IP. The applications in the smartphones is a kind of IP. The brand name associated with the mobile phone is a kind of IP. We have LCDs, LEDs at home, plasmas at home is a kind of IP. We read books, we listen to songs, we try to capture something using our mobile phones, a photograph. So this is a kind of IP. IP बहुत कुछ है. मैं एक सिंगल प्रोडक्ट की बात करूं, मोबाइल फोन एक आईपी, उसके अंदर हमारी एप्लीकेशंस एक आईपी. सेकेंडली जो एप्लीकेशंस के आइकन्स है वो एक आईपी. एप्लीकेशन कैसे वर्कआउट कर रही है वो एक आईपी. सो सिंगल प्रोडक्ट, मल्टीपल आईपी. आई टेक एन एग्जांपल ऑफ वन कार. आई से दैट suppose Tata Tigor. So a vehicle is an IP, overall IP, and a vehicle, single product, multiple IPs. How multiple IPs? Tire ke design ek IP, the overall design of the vehicle, second IP, the brand name Tata,
is an IP. The product name Tigor is another kind of IP. So single product, multiple IPs. IP काफी काफी चीजों में हो सकता है. एक प्रोडक्ट मल्टीपल आईपीस, उसकी कोई लिमिट नहीं है. So we will be discussing about various type of IP. So IPR rights are the intellectual property rights that are given to the individual or the company for their creations, for their inventions, for their brand names, for their literature. So what are the various type of IPs? These are copyrights, trademark, geographical indications, patent, design, many things, trade secrets. So these are various types of IP. So we will be discussing each one of them one by one. So what is a trademark? We say that a trademark, we always know that a trademark is there. Hota kya basically a trademark? What is a trademark? A trademark is a word or a symbol or a logo or a mascot. I give you an example. McDonald's, a trademark. Finger licking food. Phrase, वो भी एक trademark. KFC, another trademark. So a phrase can be a trademark, a logo can be a trademark, a name can be a trademark, anything. We use multiple products. We use laptops also. We use refrigerators also. We use our air conditioner also. If I take an example that I'm using Dell laptop, so the trademark of Dell is in the center one with the name Dell. Pepsi का अपना एक trademark है, ऐसे ही IMT का एक अपना trademark है. So basically a trade जरूरत क्या है, कितने टाइम के लिए? Basically when you are starting with your own firm or you are coming up with your own product, so you try to give that product or your company a name. Name can be anything. For every trademark, it is valid for 10 years only. After every 10 years, you can renew it. So to indefinite period till indefinite period, आप कितना भी टाइम तक इसको रिन्यू कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है. सो एक क्राइटेरिया है ट्रेडमार्क फाइल करने का, कि कहते हैं कि व्हेन यू आर फाइलिंग फॉर अ ट्रेडमार्क, जो ट्रेडमार्क्स हैं सिमिलर प्रोनाउंसिंग नेम्स नहीं होने चाहिए, या मैं कहूँ होमोफोन्स नहीं होने चाहिए. ठीक है. आई टेक एन एग्जांपल ऑफ ट्रेडमार्क empty. I pronounce it is coming like empty. If I remove e from the starting, still if I pronounce it coming, it will pronounce like empty. I again remove y from the last, again I pronounce it is coming like empty. So अगर मैं जो मर्जी में इसमें से रिमूव करूं, प्रोनाउंस मैं करूंगा तो आता है empty. So हम होमोफोन्स को भी हम ट्रेडमार्क के लिए फाइल नहीं कर सकते. अब मैं कहूँ IMT से रिलेटेड, IMT की फुल फॉर्म से रिलेटेड कोई भी दूसरा कॉलेज एक ट्रेडमार्क नहीं फाइल कर सकता अगर वो सिमिलर साउंडिंग नेम्स है, दैट वी कॉल होमोफोन्स. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इन्फ्रिंजमेंट एग्जांपल देता हूँ और क्लियर करने के लिए. टू कंपनीज वर देयर, पेपाल एंड पेटीएम. सो पेपाल, everyone knows, is dealing into online transactions and online shopping from 2005, 2004, 2005, and PayPal was launched in 2011, 2012. So PayPal filed a case against Paytm, infringement case, trademark infringement case against Paytm, that Paytm is using their first name Pay and using their same color combination in their trademark. If you can see that blue, the color combination of PayPal is same as the color combination of Paytm. So एक बेसिक रूल है ट्रेडमार्क का. जब आप फाइल करते हैं, एक नॉर्मल सेंस में मैं आपकी ही लेमन लैंग्वेज में बात करूं, जैसे हर एक कॉलेज में कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, आर्ट्स, हर एक का अलग अलग क्लासेस होती हैं. ऐसे ही जब हम ट्रेडमार्क फाइल करते हैं, अगर हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में
के लिए फाइल कर रहे हैं तो क्लास 40 होती है। ऐसे ही हम कॉलेजेस के लिए फाइल कर रहे हैं, जैसे मैं कहूँ ये IMT के लिए मैं फाइल करता हूँ ट्रेडमार्क, कोई इंस्टीट्यूट है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, 41 क्लास में फॉल इन होता है। अब मैं एग्रीकल्चर की बात करूँ, वो 18 क्लास में फॉल इन होता है। सो हर एक इंडस्ट्री की अपनी अपनी क्लास होती है ट्रेडमार्क पेटेंट ऑफिस में, ट्रेडमार्क ऑफिस में। So when PayPal filed a case in Indian Trademark Office that Paytm is using their same color combination and that working in the same class क्या थी, 40 क्लास थी, जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस और ऑनलाइन ई-कॉमर्स शॉपिंग में यूज हो रहा है. So still a case is going on in Indian Penal Code that a case against Paytm by PayPal. अभी भी कोई इसका डिसीजन नहीं आया. Second case, everyone knows that there's a coffee chain, Starbucks. So there was another coffee chain that with the name of Sardar Baksh. Normal Delhi NCR based ये coffee chain थी, Sardar Baksh. So Starbucks filed a case against Sardar Baksh that they are using homophones of their trademark. अगर आप प्रोनाउंस करो Starbucks and Starbucks, similar pronouncing names, homophones. So after filing case, the owner of Sardar Baksh has to change their name to Sardar G Baksh for their coffee chain, because Starbucks filed a case against Sardar Baksh in the Supreme Court that इनके नाम की वजह से मेरे बिजनेस पे अफेक्ट हो रहा है, कि people used to think that Starbucks is same as Starbucks. So this is the basic infringement case examples. Another example, if you can see that Saurabh and Saurabh, I take an example as homophones. अगर आप pronounce करो, similar pronouncing names है. ऐसे ही बिस्लेरी का आप pronounce करो, आप जो slide है अगर उसमें देखते हैं आप 4 names with the same similar pronouncing homophones of Bisleri. This is another example of trademark infringement case. Next is Nike and Nika. Another case is McDonald's, that is into food industry, and McDonald's, that is into alcohol industry. So these are basic examples of trademark infringement. Next section of IPR is copyright. Copyright is basically rights given to the individual for their music or book writing, basically for their literature art. It can be technical drawings also, advertisements also, database also, maps also, cartoon characters also. These are the rights given to the individual for 60 years. It can be a photograph also. So there is a confusion between copyright and patent. Everyone says that we have patented our research article, but there is a difference. They have not patented their research article. They have basically filed a copyright case for their that research article, research papers. I give you an example, infringement example. Everyone knows that there was a movie known as Ujhad Chaman, and another movie was Bala. So the makers of Ujhad Chaman filed a case against the makers of Bala that they both have narrated stories to each other way back in 2017. So the case is still going on between both the production houses. Another case was European artist Flora Bossi filed a case against the makers of Judgmental Hai Kya for copying their artistic work.
if you can see the similarity between the posters. So many other copyright infringement cases are there. If you remember, there was a एक program आता था colors पे, comedy nights with couple. So there was a character known as Gutti. Everyone knows that. When Sunil Grover left that show, so कलर्स के जो ओनर्स थे उन्होंने एक कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट केस सुनील ग्रोवर पे किया था कि सुनील ग्रोवर इस करेक्टर को कहीं भी यूज नहीं कर सकता किसी भी टेलीविजन पे जाके। अगर मैं आज की डेट में एग्जांपल लूं, कहते डॉक्टर गुलाटी ऑफ द कपिल शर्मा शो, वो सोनी पे ही आता है, किसी और चैनल पे नहीं आता, वो कॉपीराइट इशू है। सेकेंड केस एडवर्टीजमेंट का दूं तो वोडाफोन के जोजो करके कार्टून करेक्टर्स आते हैं, वो भी एक कॉपीराइट केस है। या चेतन भगत की नॉवेल्स आई हैं जिनके ऊपर मूवीज बनी है, वो भी एक कॉपीराइट केस है। सो मल्टीपल copyright infringement cases are there. I explained some of them. So any doubt in IPR, trademark or copyrights? Any doubt? किसी को भी कुछ भी क्वेश्चन पूछना? Any doubts related to that? Mr. Jaspreet, can you please make clear the difference between the trademark and the trade secret? Trade secret, I will be coming on later on. Okay. Any questions from anyone? So I think we should proceed. Yeah. Yes, ma'am. So what is trade secret? What do you mean by trade secret? Trade secret is a agreement that is signed between the applicant or the company and the government to not to disclose their invention to the layman person. I give you an example. There is a difference between the taste of Coca-Cola and Pepsi. There is a difference between the the noodle product. Maggi भी है, Zen Chinese भी है, Top Amazon भी है, Yippee भी है. So there is a difference between composition of every single noodle product. अब Google search engine की बात करता हूँ. Google search engine is there, Bing is there, Yahoo is there, many other search engines are there. But सबका search algorithm different है. Trade secret is basically you filed a trade secret. You file for a trade secret with the government of India to not to disclose your invention. Invention can be anything. Invention can be anything. To have a competitive edge against your competitor. कि आप एक कहते हो कि किसी को पता ना चले, तभी तो आज की डेट में अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स की बात करूं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स आते हैं, बस सब में कुछ ना कुछ टेस्ट का डिफरेंस है. दो रिवर्स इंजीनियरिंग इज पॉसिबल, बट लीगली आपको कहीं भी ये पब्लिकली किसी भी ट्रेड सीक्रेट जो फाइल हो रखा है उसकी कॉम्पोजिशन कहीं भी नहीं मिलेगी, पब्लिकली कहीं भी नहीं मिलेगी. चाहे वो KFC की स्पाइसेस हो जाए या स्पेशल सॉस हो जाए मैकडी की. मतलब ये आई गिविंग यू 2 to 3 एग्जांपल्स. मेनी अदर एग्जांपल्स आर देयर. वेपनरी आर्ट आपको कभी नहीं मिलेगा. वेपनरी आर्ट आपको कभी नहीं मिलेगा. नॉर्मल गूगल सर्च करेंगे आपको कुछ नहीं है. रेयर अर्थ मटेरियल्स पे आपको कभी कुछ नहीं मिलेगा. सो दीज आर दी trade secrets that are being signed between the government, the domestic government or the government of India and the applicant. So trade secrets is totally different from trademarks. Trademarks is basically a logo or a trade name. Trade secrets is the NDA signed between the company and the government. So दोनों different
डिफरेंट है अपने आप। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, व्हाट डू यू मीन बाय ज्योग्राफिकल इंडिकेशन? हम कहते हैं कि कश्मीरी शॉल्स, दार्जिलिंग टी, असम टी, रसगुल्ला. So these are the indication that a product is belong to this geographical demographic region. अभी एक रिसेंटली केस चल रहा था आसाम और उसके बीच में, बंगाल के बीच में, जो अभी भी चल रहा है कि रसगुल्ला बंगाल का है कि असम का है. So these are the indication, these are the this type of IP is signed between the government and the state government, the central government and the state government regarding geographical indication. ये किसी एक पर्टिकुलर एप्लीकेंट को नहीं मिलेगा. मैसूर सिल्क हो गया, दार्जिलिंग टी हो गई, शॉल्स हो गई, हर एक जगह का कुछ ना कुछ जो फेमस आर्टिकल है, फेमस प्रोडक्ट है, उसके आगे हम यूज करते हैं उसके रीजन का नाम. हम कहते हैं कि अमृतसरी कुलचा छोला कुलचे, तो एक ये भी एक हमारा एक जीआई है कि कहाँ को बिलोंग करता है. Mr. Jaspreet, can I ask one question? Yeah, please, ma'am. Like if we talk about KFC, KFC is a trade name. Yes. And if we talk about the recipe of making the products of KFC, so will it fall under the category of trade secrets? Ma'am, there are three things associated with KFC. First, as you said, trademark, the KFC. Second, it can be both under the patent also, the recipe of KFC, or it can be under trade secret also. That depends upon the applicant कि वो कैसे, मतलब कि कैसे फाइल करना चाहता है. I take an example of Punjabi by Nature, a restaurant chain, or Pind Baluchi. They have a patented recipe of butter chicken. So it depends upon them कि ये वो कैसे जाना चाहते हैं, ट्रेड सीक्रेट्स में जाना चाहते हैं कि पेटेंट में जाना चाहते हैं. अब इसमें अगर if they want to go for the trade secrets, so वो अब उनकी जो सॉस होती है, मैं KFC की बात करूं या मैकडॉनल्ड्स की बात करूं, हर एक की सॉस और टेस्ट में कहीं ना कहीं डिफरेंस है. तो वो उन्होंने ट्रेड सीक्रेट पहले से ही फाइल कर रखे हैं यूएस गवर्नमेंट के साथ, इंडियन गवर्नमेंट के साथ, या जहाँ KFC आउटलेट्स है या जहाँ मैकडॉनल्ड्स आउटलेट्स है, तो उनका सेंट्रल गवर्नमेंट के पहले से ही एक एग्रीमेंट साइन हुआ है रिगार्डिंग ट्रेड सीक्रेट्स कि वो आउट नहीं कर सकते. लेकिन अगर ट्रेड सीक्रेट्स के अलावा उनकी कई रेसिपीज होंगी जो पेटेंट में भी होंगी, जो वो उन्होंने पब्लिक डोमेन में लिया है. पब्लिक डोमेन मतलब सबके लिए नोन हो गई, लेकिन जिसपे उनको कॉम्पिटिटिव एज मिल रहा है, जो उनका टेस्ट है, वो उन्होंने ट्रेड सीक्रेट्स में रखा हुआ. Okay. So we can say that trademark is something related to name, logo, and the trade secret. It may be the way in which that trade is carried out. That the specific way which is है ना? Yes. आप दोनों को ब्रेक कर दो. ट्रेड सीक्रेट आपके काम करने का तरीका. Exactly. Thank you. Okay, so let's. Any other question, ma'am? Any other question from anyone? No, I don't have any other question. I think Nitin this side. I have a question, ma'am. Sir, I have a question. Nitin this side. Sir, I just want to know: does this trade secret applies to the medicines also? Sir, in India, you don't get trade secrets or patent on drugs or medicines. Yeah, usually it is mentioned on the medicine coverings and the packing, that the composition. So I just wanted to confirm that. Composition is written, but you won't get a patent or trade secrets on medicines. Okay. There, I will be discussing that law in this session also, in the patent section. Okay. So thank you. Okay. So I'm switching over to the design part. The
fifth part of the IPR section, that is designs. What do you mean by design? अगर आप आसपास अपने सारे देखें, that there's refrigerator is there, furniture is there, our mobile phones are there. A design is a type of IP that granted to an applicant for the ornamental structure of the product. I am saying the ornamental structure, the outer structure of the product. Utility में बात नहीं कर रहा मैं. The basic structure of the product. अगर आप एक मैं कहता हूँ a chair with a 4 leg, a chair with a 5 leg, a table with a 4 leg, a table with a 5 leg. एक चेस बोर्ड हो सकता है. आप सर्च करना, एक चेस बोर्ड है, एक इंडियन है जिसने 8 प्लेयर चेस बोर्ड बनाया, डिजाइन बनाया उसने 8 प्लेयर चेस बोर्ड का. So a design is basically the overall structure of a product. I am not coming onto the utility. Structure एक shoe का, structure एक stroller का, structure एक जो डिजाइन होते हैं हमारे कपड़े अपैरल सेक्शन होता है उसके ऊपर थ्रेड्स का डिजाइन होता है. स्ट्रक्चर किसी का भी, एक टायर का, इंडिया में there are around 10 lakhs design on tire, 10 lakh design on tire. हर एक टायर का कहीं ना कहीं किसी ना किसी थ्रेड डिफर करता है. सो बेसिकली ज्वेलरी हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है, बेवरेज कंटेनर्स हो सकते हैं, कंप्यूटर आइकन्स हो सकते हैं. अगर आप अभी अपने सारे मोबाइल फोन्स ओपन करो, हर एक आइकन किसी ना किसी दूसरे प्रोडक्ट, दूसरी ऐप से डिफरेंट है. हर एक मोबाइल फोन का आउटर स्ट्रक्चर किसी ना किसी दूसरे मोबाइल फोन से डिफर है. किसी का जो फिंगरप्रिंट सेंसर है फ्रंट पे, कईयों का बैक पे है, कईयों का वॉल्यूम सेक्शन राइट पे, कईयों का वॉल्यूम सेक्शन लेफ्ट पे है, कईयों का कैमरा फ्रंट में राइट पे, कईयों का फ्रंट में मिडल में है. तो हर एक प्रोडक्ट का, एसयूवीज की बात करूं, डिफरेंट एसयूवीज है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से डिफर करती है हर एक दूसरे से. स्ट्रॉलर हो गया, शू हो गया, थ्रेड्स हो गए, टायर हो गए. मोबाइल केस का डिजाइन, आईफोन 7 की मोबाइल केस का डिजाइन अगर आप देखो, फ्रंट व्यू, बैक व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, बॉटम व्यू, ये आईफोन 7 का डिजाइन, आईफोन 7 के कवर का डिजाइन. ऐसे ही मेरे पास अगर वन प्लस है, मेरे पास वन प्लस की कवर का डिजाइन होगा. ये बेसिकली 14 ईयर्स के लिए मिलता है एक एप्लीकेंट को, या एक असाइनी या कंपनी को, एक इंडिविजुअल को, या फिर अब मैं कहूँ एक वॉलेट का डिजाइन, एक पर्स का डिजाइन. अगर आप देखो राइट हैंड साइड पे मल्टीपल एसयूवीज है, BMW है, पॉश है, निसान है, हर एक का अपना अपना एक्सयूवी का डिजाइन है, कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज से डिफर करता है. बहुत सारी सेडान व्हीकल्स हैं जो रन करती है इंडिया में. टाटा की भी है, नेक्सॉन की भी है, टाटा की भी है, मारुति की भी है, टोयोटा की भी है, बट कहीं ना कहीं डिफरेंस है कहीं ना कहीं दूसरों से. तो बेसिकली जब हम R&D स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट से एसोसिएटेड, तो हम ये वाली आईपी मतलब अपनी डिजाइन प्रोटेक्ट कर लेते हैं पहले, कि ऐसा डिजाइन कोई और ना फाइल कर पाए. तभी हर एक मोबाइल फोन में कहीं ना कहीं डिफरेंस है. आई गिव यू एन एग्जांपल, बैक का डिजाइन, फ्रेम का डिजाइन, एक थ्रेड का डिजाइन, शू का डिजाइन, इसमें लिमिट नहीं है किसी चीज की. यूटिलिटी पे बात नहीं कर रहा वो कैसे काम करेगा. डस्टबिन का डिजाइन, एक आपके डेबिट कार्ड का डिजाइन, शर्ट का डिजाइन. मैं आपको बोल रहा था जो हमारा प्रिंटिंग होती है उसके भी डिजाइन के लिए आप डिजाइन एक डिजाइन फाइल कर सकते हो. कटलरी के डिजाइन, लिमिट नहीं है. टॉर्च का डिजाइन, चॉकलेट बार का डिजाइन, एक टूथब्रश का डिजाइन, एक मोबाइल फोन का डिजाइन, कोई लिमिट नहीं है इस पे, कोई लिमिट नहीं है. आप किसी भी n नंबर, कितनी भी चीजों की ओवरऑल जो मैं कहूँ आउटर स्ट्रक्चर पे आप डिजाइन फाइल कर सकते हो.
डिजाइन आईपी फाइल कर सकते हो, 14 इयर्स के लिए आप प्रोटेक्शन ले सकते हैं। कोई और आपकी वो डिजाइन कॉपी नहीं कर सकता, कॉपी करेगा तो रॉयल्टीज पे करने पड़ेगी। उसका एक एग्जांपल डिजाइन इन्फ्रिंजमेंट केस है जो सबको पता है। देयर वाज अ केस ऑफ एप्पल अगेंस्ट सैमसंग कि एप्पल के पास डिजाइन पैटेंट था जब आईफोन स्टार्ट हुए थे। सो ड्यूरिंग सैमसंग what Samsung done that in 2007 2008 they launched their Galaxy series, Android Galaxy series। तो उन्होंने क्या किया, जो भी फीचर्स थे ना डिजाइन, एप्पल के पास डिजाइन था, सैमसंग ने उसको कॉपी कर दिया। अगर आप देखो जो लेफ्ट हैंड साइड पे एप्पल का डिजाइन है उसपे क्या है, राउंड एजेस है, सैमसंग ने क्या किया, राउंड एजेस के साथ निकाल दिया। विद इंटरनल आप देखो जो स्पीकर का पोजीशन या माइक्रोफोन का पोजीशन या इंटरनल पावर बीच जो होम बटन का पोजीशन ऑलमोस्ट सेम है। सो एप्पल फाइल्ड अ केस अगेंस्ट सैमसंग एट दैट टाइम इन 2011। सो अराउंड $399 बिलियन में की रॉयल्टीज सैमसंग को पे करना पड़ा एप्पल को। ये सिर्फ डिजाइन से रिलेटेड है, ये इसकी यूटिलिटी पे बात नहीं, पेटेंट पे बात नहीं कर रहा, ये डिजाइन के लिए था सिर्फ कि इन्होंने Samsung copied the design of Apple। तो उन्होंने डिजाइन कॉपी किया और एप्पल ने क्या किया, एक इन्फ्रिंजमेंट केस फाइल किया और रॉयल्टीज ली सैमसंग से। ऐसे ही आपके पास कोई आईपी है, मतलब डिजाइन आईपी है, अगर और कोई बंदा इंडिया में, इंडिया की बात कर रहा हूँ, इंडिया में आपके पास डिजाइन है, इंडिया में कोई और बंदा यूज करता है तो आप उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हो रॉयल्टीज के कि मैंने ये आईपी, ये डिजाइन प्रोटेक्ट किया हुआ है, सो नो वन एल्स कैन यूज दिस डिजाइन। डिजाइन से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस? Yeah, I have one question. Yes, ma'am. Suppose someone is copying the design beyond the boundaries of the nation, then will it be claimed? We can't do it. Like if somebody is sitting in India and the another person is sitting in America and the Indian or the American is copying the design of the other person, so will the person who is... Ma'am, there's a way for it. Actually, when you are filing for design in India, you can file at the same time in US also. Okay. Then if that person is using it, he or she has to pay the royalties. Otherwise, all the design is basically territorial. Means it will be used in India only. आपको बाहर के लिए बाहर फाइल करना पड़ता है. So there are applications that actually patents and design are domestically oriented. So you can't claim outside. And what about the trademarks? They can use it, but they can't use in India. Copyrights, same related. Only copyrights are there that can be used, that can't be used anywhere. Apart from that, every IP is territorial. Okay. Every IP is territorial. Okay. And in the case of copyright, like to what extent if somebody is copying the text matter of somebody else, that will comes under the copyright violation? Yeah. If you can see that I have most of the slide on the right side, I have put copyright @Verispire. So that is the reason if someone else wants to copy it, I can file copyright infringement case against him because that is our material. अगर आपका कोई मैं कहूँ कि lectures वगैरह जैसे online lectures हैं, आपने रिकॉर्ड किए हुए हैं सेशन, अगर और कोई और आके कॉपी करने की कोशिश करता है, यू कैन फाइल कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट केस बिकॉज वो आपके कॉलेज का मटेरियल है या आपका मटेरियल है, कोई और कैसे कॉपी कर सकता है? जैसे आपके रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं, जितने भी रिसर्चर्स आपके हैं, तो कोई और कॉपी करेगा तो एक इन्फ्रिंजमेंट केस बनता है उन पे भी कि कोई और कॉपी नहीं कर सकता वो मटेरियल।
So that is different. Suppose किसी ने मेरा क्वेश्चन ये था कि किसी ने सॉरी किसी का मैटर कॉपी किया, सपोज एक लाइन कर लिया या एक पैराग्राफ कर लिया, तो what are the guidelines for that? Like to what extent if somebody is copying somebody else text, that will comes under copyright violation? Ma'am, there is a rule that in patents की बात बताऊं, we can't copy up to we can only copy up to 10 words only, not more than 10 words. ठीक है, उसमें क्या है कि कोई भी अगर कोई कॉपी कर रहा है, अगर एक लाइन कॉपी की लेकिन उससे कुछ उसको अचीव तो नहीं हुआ ना। एग्जैक्टली। जब तक कुछ उसको कुछ बेनिफिट तो नहीं हुआ ना। अगर बेनिफिट नहीं हुआ तो आपका केस एक तरह से लायबल नहीं होगा वो चीज। अगर उससे वो रॉयल्टीज उठा रहा है या मैं कहूँ अपने रिसर्च पेपर उसने पब्लिश कर दिए, कुछ आपके रिसर्च पेपर से मैटर उठा के या आपके आर्टिकल से उठा के, और उसको मॉनेटरी बेनिफिट्स हो रहे हैं कहीं ना कहीं, तो आप एक इन्फ्रिंजमेंट केस फाइल कर सकते हैं उसमें, क्योंकि उसको बेनिफिट हो रहा है किसी न किसी चीज का। And suppose if somebody is copying somebody else's text and making some minor changes within that text, then will it comes under copyright violation? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैंने किसी का एक पैराग्राफ उठाया और मैंने उसमें कुछ लाइंस बदल दी। आपने बदल दी, आपको अगर मॉनेटरी बेनिफिट हो रहा है, आप केस क्यों फाइल करोगे? कि किसी को मॉनेटरी बेनिफिट हो रहा है तभी आप करोगे ना। एक इंडियन ट्रेडमार्क कॉपीराइट ऑफिस का ये भी है कि अगर आप केस फाइल कर रहे हो, जो जिसके अगेंस्ट केस फाइल कर रहे हो, उसको कोई मॉनेटरी बेनिफिट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। कि अगर वही बंदा क्लेम कर दे कि मैं बैंकरप्ट हूं, मैं नहीं दे सकता, ना मेरे को इससे कुछ बेनिफिट हुआ है, तो वो आपका केस भी फिर वो हो जाता है, मतलब कि क्लोज हो जाता है, क्योंकि वो बंदा ही नहीं, उसको वो अपने लिए कर रहा है, ना किसी और, ना वो बेच रहा है आगे, वो अपने लिए कर रहा है सिर्फ, वो सेल आउट नहीं कर रहा किसी चीज को, या उससे उसको मॉनेटरी बेनिफिट नहीं मिल रही। ठीक है। अब एक केस, एक मूवी आई थी हाउसफुल 4, उसमें गाना था बाला करके, तो एक यूरोपियन आर्टिस्ट का गाना था, उसमें उनको अराउंड 4 करोड़ पे किया था यूरोपियन आर्टिस्ट को, सिर्फ उस टैग, वो बाला उठाने के लिए, एक म्यूजिक उठाने के लिए, सिर्फ कॉपी करने के लिए। सो वो उनको रॉयल्टीज मिली ना, क्योंकि आगे उनको सेल आउट होना था वही गाना। ठीक है, मूवी सेल आउट होनी थी, मॉनेटरी बेनिफिट्स आने थे। अब मैं कहूँ आपका कोई मैटर उठा के बुक पब्लिश करते हैं और उसकी बुक फेमस हो जाए हर जगह, ठीक है, तो आप एक क्लेम करो कि इसमें कुछ मैटर है जो मेरी बुक से उठाया हुआ है, और या तो ये रॉयल्टीज पे करे पर बुक, या मुझे इसमें क्लेम दे कि आगे से जितनी भी बुक्स फाइल होंगी, उसमें इतना परसेंट मेरा, मतलब 10% प्रॉफिट मेरा होगा या 50% मेरा होगा, या फिर बुक जो अभी तक गई थी उनको वापस बुला ले, जितना भी सेल आउट हुई है उनको वापस बुला के फिर से पब्लिश हो बुक, और उसमें वो वाला मैटर हटा दो जो मेरा। Okay. That is, it comes into enforcement only when somebody else is taking out some monetary benefit of it. Yeah, exactly. Okay. Thank you, Mr. Jaspreet. Any questions till now? Sir, I have a question regarding this. Yes. Sir, यदि मैं कोई डिजाइन कर रहा हूँ, जैसे शू का ही डिजाइन कर रहा हूँ या कोई टेबल में डिजाइन कर रहा हूँ, एंड बाय समहाउ मेरा जो डिजाइन है कोइंसिडेंटली इट मैचेस विद समवन, और मैं उसको फाइल कर रहा हूँ, डिजाइन को मतलब फाइल करने जा रहा हूँ, तो क्या आई गेट टू नो इट बिफोर इट इज फाइनलाइज कि ये एक कॉपीड कंटेंट या एक कॉपीड डिजाइन है, या कुछ इस तरह का मुझे पता चलेगा? बिकॉज ये तो कोइंसिडेंट हो गया कि मेरा मैच हो गया है। यस सर, बिल्कुल। एक्चुअली अभी मैं लास्ट में बताऊंगा इस चीज को। अब मैं आपको आंसर पहले दे देता हूँ कि बिफोर फाइलिंग फॉर योर डिजाइन एप्लीकेशन और फॉर योर पेटेंट एप्लीकेशन, व्हाट वी डू, वी यूज टू सर्च बिफोर दैट, बिकॉज पेड डाटाबेस है एंड फ्री डाटाबेस भी है, जहाँ पे पता चल जाता है कि सेम डिजाइन अवेलेबल है या नहीं। ठीक है,
अगर ओके कहीं भी मैं कहूँ ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी वो डिजाइन है, चाहे वो पेटेंट की फॉर्म में हो या मैं कहूँ आईपी की फॉर्म में हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की फॉर्म में हो या नॉर्मल फॉर्म में हो, मतलब गूगल पे वैसे भी अवेलेबल है, तब भी आपको पेटेंट नहीं जी। मिलेगा और डिजाइन नहीं मिलेगा। सबसे पहली बात, अच्छा चाहे वो किसी अच्छा भी सर। रीजन में हो, किसी भी रीजन में हो, क्योंकि वो ओके पहले से ही पब्लिक डोमेन में आउट हो रखा है। जी जरूरी नहीं है कि इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड आपकी कोई भी डिजाइन, आपका कोई भी डिजाइन है, चाहे वो फ्रिज का है, चाहे आपके फर्नीचर का है या आपकी गाड़ी का है, अगर वो पब्लिकली कहीं भी नोन है, पेटेंट की फॉर्म में, डिजाइन की फॉर्म में या नॉर्मल फॉर्म में, या कहीं फोटोग्राफ्स जी भी किसी के पास अवेलेबल है, उस डेट जी से पहले मैं कहूँ आप फाइल करते हो 1 मई को आपने फाइल करने गए, अगर 1 मई से पहले किसी के पास भी अवेलेबल है वो चीज इलेक्ट्रॉनिकली, जी जी मेरे को मिल जाती है इलेक्ट्रॉनिकली, कहीं भी मिल जाती है, तो आप फाइल नहीं कर सकते। राइट। आप सॉरी, आप फाइल कर सकते हो, वो रिजेक्ट हो जाएगी। फाइल तो सब कुछ कर सकते हैं, रिजेक्ट हो जाएगी। अच्छा जब सर ठीक है। एग्जामिनेशन होगी वो रिजेक्ट हो जाएगी। फाइल तो कुछ भी कर सकते अच्छा, अगर may I interrupt? या Yes, Suppose if the two persons are there, like it is on the question of Nitin, which he has just asked. या दो लोगों ने डिजाइन बनाया, दोनों में सिमिलैरिटी है, लेकिन दोनों ने अभी तक उसको डिजाइन को फाइल नहीं किया, फाइल नहीं किया है. हम्म, Then suppose उनमें से कोई एक फाइल कर देता है and suddenly the other one will come out with the same design and claiming that he has copied my design. So what will be the solution मैम of that problem? Is इंडिया it like first come, सब यस मैम, first file इंडिया में and ना first रूल, own concept? यस मैम, इंडिया में कंसेप्ट है फर्स्ट टू फाइल, Okay, that फर्स्ट whosoever टू will be filing first, that will be his property only. यस। मैं इसमें Okay. एक और सिनारियो लाता हूँ कि हम्म नितिन ने पहले फाइल कर लिया, नितिन और जसप्रीत एक साथ डिजाइन पे काम कर रहे थे, नितिन ने पहले फाइल कर दिया 1 मई को, लेकिन जसप्रीत ने 30 अप्रैल को पहले ही ऑनलाइन पब्लिकली उसको आउट कर दिया था किसी भी फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, ओके तब भी नितिन को डिजाइन नहीं मिलेगा अगर वो एग्जामिनर के नोन आ जाता है वो चीज, कि एग्जामिनर को पता चल जाता है कि एक दिन पहले तक भी अगर जसप्रीत ने वो इलेक्ट्रॉनिक डोमेन पे आउट कर दिया था कहीं, चाहे वो पेटेंट की फॉर्म में हो या डिजाइन की फॉर्म में हो या नॉर्मल फॉर्म में हो, तब भी डिजाइन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी अगर एग्जामिनर को पता चल जाता है तो। मैं तब की बात कर रहा हूँ। एग्जामिनर यू उनको मीन टू से सर कि जो, सॉरी मैम Yes. आप बोलिए। बस तुम्हारा ही सवाल पूछ रही थी कि एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा? मैम एक्चुअली जैसे यस मैम मैं वही जैसे आपके कॉलेज में हर एक डोमेन के स्पेसिफिक लेक्चरर प्रोफेसर है ना, वैसे एग्जामिनर्स भी होते हैं हर डोमेन की स्पेसिफिक, तो उनके Okay. पास एप्लीकेशंस आती रहती हैं, तो वो कोई भी एग्जामिनेशन करने से पहले जो भी प्रोडक्ट या कोई भी इन्वेंशन आई है पहले सर्च करते हैं, ठीक है, सर्च करते हैं। अब अगर सपोज 30 अप्रैल को मैंने जसप्रीत ने आउट कर दिया था इलेक्ट्रॉनिक डोमेन में और 1 मई को नितिन ने फाइल किया, जो एग्जामिनेशन होती है मैम वो आफ्टर 2 इयर्स होती है। Okay. आफ्टर 2 इयर्स होती है, तब तक तो सबको पता ही चल जाता है इतनी जल्दी मतलब 30 अप्रैल का मे बी 14 मई तक ना आया हो, इलेक्ट्रॉनिकली विजिबल ना हो, लेकिन 2 साल बाद तो हो ही जाएगा किसी ना किसी वे में। ठीक है, एक और चीज कि मुझे पता था कि नितिन ने फाइल कर दिया है, तो मैं अपने एंड पे ही एक ऑब्जेक्शन फाइल कर देता हूँ डिजाइन ऑफिस में, इंडियन डिजाइन ऑफिस में, कि ये जो एप्लीकेशन फाइल की है नितिन ने, ये तो पहले ही आउट है, तो इसको आप एग्जामिन करो ही ना, ये भी हो सकता है। Okay. सो बोथ मैनी इफ एंड बट्स आर देयर, हो भी सकता है अगर एग्जामिनर स्किप कर दे, हो सकता है डिजाइन मिलने के बाद भी रिजेक्ट हो जाए, मतलब मिल गया उसको डिजाइन 14 इयर्स के लिए, उसके बाद फिर से किसी ने ऑब्जेक्शन रेज की, उसके बाद फिर रिवोक हो गया, वो डिजाइन रिवोक हो गया, ये भी हो सकता है। Okay.
तो सर अच्छा, I after have one 14 more. years, या प्लीज। बोलो नितिन। हाँ सर 14 इयर्स का टेन्योर पूरा होने के बाद भी कोई उसको रिन्यू कर सकता है नहीं, बेसिकली फिर तो पब्लिक डोमेन में आ गया, कोई भी यूज कर वो सकता है। पब्लिक डोमेन आ गया। ओके ठीक है कोई भी मैम यूज प्लीज। उस पर कोई लीगल वैल्यूज नहीं हुई ना, उसकी कोई लीगली एंटाइटल नहीं हुआ ना, वो एनफोर्सेबल नहीं हुआ आफ्टर 14 इयर्स। ठीक है। Mr. Jaspreet, I do have one question. या Suppose I have some creative idea, है ना? I want to get it patented. Or for that, I'll have to take the support of some patent agent. या I gave my idea to him just to find out whether it can be patented or not. And suppose it comes out that it cannot be patented as it is. Then what is the way out if I want to get it patented? Ma'am, actually, first of all, I got your question that it won't be patented. Patent comes to you and say that it won't be patented. But it is up to the drafter, the one who is drafting your application. Because suppose जिसकी वजह से आपकी एप्लीकेशन पेटेंट नहीं हो सकती, वो कितनी ब्रॉड है और कितनी अलग है आपकी इन्वेंशन से। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो उसकी इन्वेंशन में है, सपोज ABC आर दी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स ऑफ दैट इन्वेंशन, और आप कहते हो मैं एक और सिस्टम लेके आ रही हूँ, वो वैसे ही काम करेगा पर उसकी सिस्टम रिक्वायरमेंट ABC ना होके DEF है। आप कुछ चेंजेस कर देते हो उसमें, जिससे क्या कहते हो आप एफिशिएंसी में इंक्रीज करवा रही हूँ सिस्टम की। परफॉर्म वही चीज कर रहा है पर मैं उसके अंदर सिस्टम एलिमेंट्स न्यू लेके आ रही हूँ, तो उससे क्या होगा कि आपका सिस्टम नया भी हो गया, नॉवल भी हो गया, उससे रिलेटेड भी नहीं हुआ। मतलब मीन टू से कि सपोज इफ वी हैव क्रिएटेड थोड़े से समथिंग, चेंज करके उसको, हाँ उसमें कुछ चेंज करके सो दैट इट्स नोवेलिटी कैन बी प्रूव्ड। I give you an example. Suppose that person was claiming that I am using microprocessor. Okay. ठीक है, और आप क्लेम कर देते हो मैं 8085 माइक्रोप्रोसेसर यूज करूंगी, आप नैरो कर देते हो उसको। उसने कह दिया जनरल कोई भी माइक्रोप्रोसेसर, आप और नैरो कर देते हो कि मैं स्पेसिफिक ये सिस्टम एलिमेंट्स यूज करूंगी। ठीक है, या मैं क्या कहते हैं माइक्रो कंट्रोलर कोई ऐसा यूज करूंगी जो उसने मेंशन नहीं किया हुआ। वो भी माइक्रो कंट्रोलर यूज कर रहा है, आप भी कर रहे हो, पर उसका माइक्रो कंट्रोलर और आपका माइक्रो कंट्रोलर डिफरेंट है। ठीक है, तो आप ऐसे अचीव कर सकते हो, क्योंकि जब भी एक ड्राफ्टिंग की जाती है उसमें कुछ पेटेंट साइट किए जाते हैं कि ये पहले से नोन है, बट उसमें क्या नहीं है जो आपकी करंट एप्लीकेशन में है, मतलब क्या ड्रॉबैक्स थे जो आपकी करंट एप्लीकेशन अचीव कर रही है, मतलब उसकी आपकी करंट एप्लीकेशन की क्या एडवांटेजेस है, तो वो हम साइड करते हैं। फिर जो आपको नियरेस्ट पेटेंट मिला है, जो उस पेटेंट एजेंट को नियरेस्ट पेटेंट मिला है आपकी करंट एप्लीकेशन के हिसाब से, तो हम उसी को साइड कर देते हैं कि इसमें ये चीज है लेकिन हमारा किसी डिफरेंट वे से अचीव करवा रहे हैं हम, ऐसा काम नहीं कर रहा। हमारा सब्जेक्ट पेटेंट जो हम करंट एप्लीकेशन है वो हमारे जो हमने पेटेंट साइड किए उससे कहीं ना कहीं इस टर्म्स में डिफर करती है। ओके तो shall I proceed or any other questions regarding this? हाँ सर, सर मेरा क्वेश्चन संदीप कर्नाल दिस साइड। हेलो। यस सर। जैसे अभी टोयोटा ने मारुति की ब्रेजा को टेक ओवर किया है, जैसे ना कि मैं आपकी कार बेचूंगा, और ऐसे ही मारुति क्या उसकी फॉर्च्यूनर को अपने यहाँ बेच सकती है अपने उसमें करा के, जैसे मारुति की वो क्रॉस लाइसेंसिंग होती है सर। जैसे अभी नेक्सा की जो वो आई थी अभी जो चल रही है हमारी गाड़ी में, तो नाम नहीं याद आ रहा, तो ब्लेनो जो निकाली थी, अब क्या है कि टोयोटा की सेम उसके साथ आ रहा है, लेकिन टोयोटा के लिए मारुति नेक्सा बना रहा है, लेकिन उन्होंने क्रॉस लाइसेंसिंग। मैंने ये इसलिए पूछा बिकॉज लाइक ऑल द फैकल्टी मेंबर्स, ऑल द पार्टिसिपेंट्स हु आर listening, idea like the system, and if you have applications that will be covered and the other purpose. Yes, so this was क्रॉस लाइसेंसिंग की नेक्सा और टोयोटा के बीच में डील साइन हुई है कि आप हमारे लिए बना के दो,
उसका जितनी हमारी सेलिंग होगी हम उसका कुछ % आपको देंगे। अच्छा जैसे आपने बोला कि 14 इयर्स के लिए जो डिजाइन है वो रहता है, सेव रहता है, मतलब इंडियन जिसमें भी होता है, हम यहाँ पे करते हैं हम लोग डिजाइन, उसमें डिजाइन अथॉरिटी के पास। क्या जैसे फॉर्च्यूनर को काफी टाइम हो गया, क्या उसको कोई और कंपनी बना सकती है विदाउट एनी, उनको कुछ दिया, रॉयल्टी दी या कुछ भी दिए? नहीं, अगर बना तो मैं भी सकता हूँ, बना तो मैं भी सकता हूँ, हाँ बनाने में सर, कोई वही इशू ना। नहीं है। बट लेकिन अगर उनके पास कहीं कंप्लेंट चली गई है, उन्होंने कहीं फाइल कर दिया आपके अगेंस्ट केस कि हमारा जो ये डिजाइन है ये नॉवल है, अगर आप चेक करो फॉर्च्यूनर के भी इतने सारे डिजाइन आए इन द मील वाइल, ठीक है, कुछ ना कुछ चेंजेस होके नाम फॉर्च्यूनर ही था। वो तो जब उन्होंने नया प्रोडक्ट निकाला है फॉर्च्यूनर का, उन्होंने उससे पहले उसका डिजाइन फाइल किया हो। नहीं, जैसे पुराना प्रोडक्ट निकालना हो सर, जो 14 ईयर हो चुके, जैसे फर्स्ट आया था फॉर्च्यूनर, सर ऐसा आप होता है ना निकाल कि सकते हो, अगर एनफोर्सेबल नहीं है तो हाँ। आप निकाल सकते हो, एनफोर्सेबल नहीं है। सर ये बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे गाड़ियों में फेसलिफ्ट आ जाता है एवरी ईयर और एवरी 2 इयर्स। यस, एग्जैक्टली। अब इसमें भी वो इसीलिए करते हैं। एक टर्म होती है कॉन्टिन्यूएशन। कॉन्टिन्यूएशन क्या होती है मैं बताता हूँ। जैसे सपोज मैंने एक डिजाइन फाइल किया था 1991 में, ठीक है, 1991 1 जनवरी 1991 में फाइल किया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि वो जो डिजाइन है वो 2004 तक वैलिड था, ठीक है, फर्स्ट डिजाइन फाइल किया। उसके नीचे उसके ऊपर मैंने एक कॉन्टिन्यूएशन या मैं कहूँ एक चाइल्ड एप्लीकेशन फाइल की, पेटेंट एप्लीकेशन फाइल, ठीक है, वो मैंने फाइल की 1993 में, थोड़ी सी फेसलिफ्ट करके तो 1993 में फाइल किया, उसकी ड्यूरेशन आ गई 2007 तक, ठीक है। ऐसे ही फिर मैंने एक और फेस अपलिफ्ट करके फाइल किया सपोज 1999 में, ठीक है। मैं वैरायटी वहीं से ले रहा हूँ 1991 से, ठीक है, लेकिन मेरी टर्म है डिजाइन वो 1999 से 2013 तक चलेगी। ऐसे ही ये फाइल करते रहते हैं आगे आगे, ठीक है। आज की डेट में अभी मैं आपको पेटेंट्स वाले पे आऊंगा, आपको क्राइटेरिया समझाऊंगा, वो बिल्कुल अलग चीज है, मतलब कि हमें लगता है बहुत नॉर्मल है, बट वो बहुत अलग चीज है। ये मैं आपको अभी डिस्कस करूंगा ये चीज कैसे करते हैं ये। ठीक है सर, ओके सर। एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग डिजाइन? So shall I continue? Yes sir. Yeah, please. Yes sir. Yeah. So let's come on design. What is design? Oh, patents. What do you mean by patent? Patents होता क्या है? मतलब कि everyone says that I have a patent for certain application. What is patent? Basically, a patent is a kind of right, exclusive right that is given to the inventor or the applicant for their invention for a period of 20 years. So 20 years के लिए आपको एक right मिल जाता है किसी invention पे काम करने का. So invention, what is the invention? Invention can be a process of making infrared heaters. Example, machine हो सकती है, machine for cleaning leaves out. कोई आर्टिकल हो सकता है, आर्टिकल ऑफ मैन्युफैक्चर, कोई चेयर, कोई पेंसिल, कोई फर्नीचर, कुछ भी हो सकता है. कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर, पेंट्स एंड ड्रग्स, और कोई नई इंप्रूवमेंट हो. जैसे मैम ने कहा था कोई पहले से ही पेटेंट अवेलेबल था तो मेरी इन्वेंशन पेटेंट होगी कि नहीं होगी. अब मैं कहता हूँ इंप्रूवमेंट की पास्ट इन्वेंशन पे, कि एक पहले इन्वेंशन थी डाइंग मशीन थी, वो 100 डिग्री सेल्सियस पे काम कर रही थी. अब आप एक डाइंग मशीन लेके आ रहे हो वो 30 डिग्री सेल्सियस पे काम कर रही है. कुछ नया इंप्रूवमेंट लेके आए, उसमें कुछ आपने पार्ट्स चेंज कर दिए मशीन, ठीक है. तो एक प्रोसेस पे, एक मशीन पे, एक आर्टिकल ऑफ मैन्युफैक्चर, कॉम्पोजिशन या कुछ इंप्रूवमेंट है ओवर द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, इस पे आप पेटेंट फाइल कर सकते हो, पेटेंट एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो, ठीक है. सो बेसिकली दिस इज फॉर 20 इयर्स. 20 इयर्स के लिए आपको फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग एक एनफोर्सेबिलिटी मिलती है. अब रिक्वायरमेंट्स क्या है पेटेंट के लिए? 4 रिक्वायरमेंट्स है. पहली है कि एक नॉन ऑब्वियस होना चाहिए. नॉन ऑब्वियस मतलब कि ये नहीं कि दो चीजें मिला के एक चीज बना रहे हो.
कि पहले से ही एक ए सिस्टम अवेलेबल है, बी सिस्टम अवेलेबल है, आपने ए और बी मिला के एक सी बनाया जिसमें दोनों की प्रॉपर्टीज आ रही है, ये कहीं भी एप्लीकेबल नहीं है। नोवेल्टी क्या है? अगर नोवेल्टी मैं कहूँ, एक वही डाइंग मशीन की मैं बात करूं कि नोवेल्टी ये थी कि वो 100 डिग्री सेल्सियस पे ना होके 30 डिग्री सेल्सियस पे काम कर रहा था। तो वो नोवेल्टी अचीव कैसे की? वो नोवेल्टी कुछ नॉवल अरेंजमेंट ऑफ सिस्टम एलिमेंट्स इन द मशीन। आपने कुछ कि मैं इसको जो डाइंग मशीन है उसको 30 डिग्री सेल्सियस पे काम कराना है, तो जो उसके कंपोनेंट्स थे ए बी सी ना करके आपने ई एफ जी एच भी हो सकते हैं। मतलब आपने क्या ऐसा न्यू नोवेल्टी यूनिक फीचर लाए कि आपने वो 30 डिग्री सेल्सियस अचीव किया एक डाइंग मशीन का। थर्ड यूटिलिटी कि ये इसकी कोई यूटिलिटी है, प्रैक्टिकल यूटिलिटी है कि नहीं है। डिफरेंस बिटवीन डिजाइन एंड पेटेंट इज दैट कि मैं एक एग्जांपल दूं चेयर का एग्जांपल देता हूं। अब मैं जब डिजाइन के लिए फाइल करूं, मैं सिर्फ एक चेयर पे डिजाइन फाइल करूंगा, मतलब उसका ऑर्नामेंटल स्ट्रक्चर, 4 लेग्स हैं, बैक का डिजाइन कैसा है और जो सीट है उसका कैसा है, साथ में फुटरेस्ट है कि नहीं है। ठीक है, जब मैं पेटेंट के लिए फाइल करने जा रहा हूँ, तो मैं क्या फाइल कर रहा हूँ, मैं उसका कह रहा हूँ कि मेरे पास एक चेयर है हैविंग 4 legs, a footrest, a seat with having 6 layers, 6 foam layers, एक पॉलीयूरेथेन की है, एक पॉलीइथाइलिन की है, जिसकी वजह से कंफर्टेबल लेवल अचीव हो रहा है जब एक इंडिविजुअल बैठता है एक चेयर पे। ये एक मैंने डिजाइन में भी फाइल कर दी एप्लीकेशन, एक पैटेंट में भी फाइल कर दी। मतलब एक ही एप्लीकेशन मैंने दोनों जगह फाइल कर दी। एक तरफ उसकी सिर्फ ऑर्नामेंटल स्ट्रक्चर था, एक प्रोडक्ट का ओवरलुक थी, और एक जगह उसकी एप्लीकेशन थी। तो प्रैक्टिकल यूटिलिटी क्या थी? कंफर्ट लेवल प्रोवाइड कराना एक इंडिविजुअल को। ठीक है, तो एक नॉन ऑब्वियस होना चाहिए, यूटिलिटी नॉवेल्टी होनी चाहिए कि क्या कैसे यूनिक है, ओल्ड फीचर्स से हटके कैसे है आपकी इन्वेंशन, एंड थर्ड यूटिलिटी क्या अचीव हो रही है आपकी। सो और फोर्थ फीचर है इंडियन पेटेंट लॉ के कुछ सेक्शंस है, अगर वो सेक्शंस सारे सेटिस्फाई होते हैं तो ही आपको पेटेंट ग्रांट होता है, नहीं तो नहीं होता। अब पेटेंट किस किस पे मिल सकता है? किसी भी आर्ट, प्रोसेस, मेथड, मैनर, मशीन, ऑपरेटर्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विच हैज टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, फूड, केमिकल, मेडिसिन पे मैंने कहा था नहीं होता, बट इन अ वे कॉम्पोजिशंस पे हो जाता है। डायरेक्टली आप मेडिसिन के लिए जाओगे तो नहीं हो पाएगा। सो काफी सारी पेटेंट ज्वेलरी पे हो सकता है, मशीनरी पे हो सकता है, आपके ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में हो सकता है, आपकी कटलरी पे हो सकता है, तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। कई नॉन पेटेंटेबल आइटम्स भी हैं, वो भी डिस्कस करेंगे, बट इसमें क्या क्या हो सकता है वो मैंने मेंशन कर दिया है। एक एग्जांपल दे रहा हूं कि एक पेटेंट का एग्जांपल, IoT बेस्ड स्मॉल इरिगेशन मॉनिटरिंग सिस्टम विद AI स्क्रीनिंग फॉर सॉइल मॉइस्चर। मतलब AI के थ्रू हम एक जो लैंड है उसमें से हम डिटेक्ट कर पाएंगे कि इसमें मॉइस्चर है कि नहीं है। ये इंडियन पेटेंट है जो फाइल किया था किसी यूनिवर्सिटी ने। ठीक है, इसमें इसने क्या क्या कंपोनेंट्स यूज किए, एक ह्यूमिडिटी सेंसर यूज कर दिया, एक टेम्परेचर सेंसर यूज कर दिया, एक मॉइस्चर सेंसर यूज कर दिया। सबके इनपुट लेके AI के बेस एक प्रेडिक्टिव सिनेरियो तैयार किया कि इस सॉइल पे खेती हो सकती है कि नहीं हो सकती। एक सॉइल की स्क्रीनिंग एक तरह से। एक अनदर एग्जांपल 8085 माइक्रोप्रोसेसर यूज करके ऑटोमेटिक प्लोइंग सिस्टम, रोबोटिक प्लोइंग सिस्टम, बेसिक इन्वेंशन सिर्फ 8085 यूज करके, कुछ नया नहीं है इसमें। एक और सिस्टम इन मेथड फॉर ऑटोनोमस सोलर एक्सपोजर। अब इसने क्या किया है कि गाड़ी के ऊपर ही सोलर पैनल्स लगा दिए और उसको बैटरी से अटैच कर दिया। मतलब बैटरी को चार्ज करने की जरूरत नहीं, वहां से जो पावर आएगी वो जाके हमारी बैटरी में स्टोर हो जाएगी। सिंपल इन्वेंशन, नथिंग कॉम्प्लेक्स,
नथिंग कॉम्प्लेक्स, कुछ भी आप पेटेंट फाइल कर सकते हो, कुछ भी। अब इंडिया का पहला पेटेंट कब मिला था? 1856 में। इंडिया IN1, आप चेक कर लेना, जॉर्ज द पैनिक करके हैं इनकी, आज भी हैदराबाद में एक फॉर्म द पैनिक करके चल रही है। ये बेसिकली IN1, 2, 3, 4 जॉर्ज द पैनिक को ग्रांट हुए थे। पहला जो फर्स्ट पेटेंट था वो नॉर्मल एफिशिएंट मैकेनिकल पंखा पुलिंग सिस्टम, सिंपल इन्वेंशन, फर्स्ट पेटेंट ऑफ इंडिया। अब मैं कहूं, जब मैं कह रहा हूं कि किसी भी चीज पे पेटेंट फाइल कर सकते हैं, एक सिंपल एनिमल एयर प्रोटेक्टर, अगर आप देखो इस इन्वेंशन में कुछ मैकेनिकल नहीं है, कुछ मैकेनिकल नहीं है, ये बेसिकली एक एनिमल एयर प्रोटेक्टर सिस्टम है, ताकि व्हेनेवर एन एनिमल हैविंग सम फूड और उसके जो भी एयर्स है वो फॉल इन ना हो फूड में, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसने एक एनिमल एयर प्रोटेक्टर बना दिया। किया क्या है इसने, 2 स्ट्रिप्स लिए हैं और 2 सिलेंड्रिकल वो लिए हैं, सेल्स लिए हैं, दोनों अटैच करके एक काइंड ऑफ हेलमेट बना दिया, एयर हेलमेट बना दिया। कुछ वियर्ड नहीं है इसमें। अभी रिसेंटली 20 अप्रैल को सोनी ने एक पेटेंट फाइल किया है। ये है रोबोटिक फ्रेंड, कि जब भी आप कोई मूवीज देख रहे हो या गेम प्ले कर रहे हो तो आपके साथ इंटरैक्ट करेगा, इंटरैक्टिव रोबोटिक फ्रेंड। काफी मतलब लेटेस्ट है ये, अभी तक का सबसे लेटेस्ट है। एप्पल लेके आ रहा है सिंगल ग्लास सिस्टम्स, सिंगल ग्लास डेस्कटॉप विद डिटैचेबल कीबोर्ड। ये जनवरी 18 को फाइल किए थे एप्पल ने पेटेंट एप्लीकेशन। क्वाइट न्यू, क्वाइट नॉवल, सिंगल ग्लास। डायसन ने एयर प्यूरिफायर हेडफोन्स निकाले, अगेन क्वाइट नॉवल, क्वाइट यूनिक। मतलब लिमिट नहीं है। आप ये देखो कि अगर मैं पिछला भी देखूं, रोबोटिक फ्रेंड हो चाहे सिंगल ग्लास लैपटॉप्स हो, या नॉवल क्या है, नॉवल क्या है इसमें, इन्होंने क्या एक टेक किसी दूसरी टेक के साथ मिक्स करके कुछ अचीव करवा रहे हैं। मई में ओप्पो ने पेटेंट फाइल किए हैं स्मार्टफोन के साथ क्यूएटी कीपैड, 7 मई का है फाइलिंग। अभी तक जो भी क्यूएटी कीपैड थे वो जावा फोन्स में आ रहे थे, फिजिकल क्यूएटी कीपैड। ये इन्वेंशंस हैं कई। अब एक आप गूगल करना, एक मुंबई का स्टूडेंट है, 22 ईयर्स ओल्ड, सुब्रमण्यम नायडू करके है, उनकी कंपनी है पैटसॉफ्ट। उनकी इन्वेंशन थी एलईडी पेट कॉलर्स पे। सो रतन टाटा 14 मिलियन की फंडिंग की है उसने, रतन टाटा ने। आप चेक करना, गूगल कर सकते हो कभी भी, 14 मिलियन की फंडिंग की थी उनको। इन्वेंशन क्या थी, सिंपल एलईडी पेट कॉलर्स पे। पैटसॉफ्ट करके कंपनी है जो मुंबई में रन हो रही है। ऐसे ही ये 2 इन्वेंशन है जिसपे पेटेंट भी है और कमर्शियलाइजेशन भी हो रखी है। पहली इन्वेंशन है थर्ड पार्टी जूम लेंस, मतलब एक एक्सरे का काम करेगा थर्ड पार्टी लेंस। सेकंड है डॉल्फी। ये क्या करेगा, अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज करके आपके कपड़ों पे जो भी डस्ट है वो रिमूव करेगा। क्वाइट यूनिक, सिंपल, एक मोबाइल प्रोडक्ट्स हैं, कहीं भी इंप्लीमेंट हो सकते हैं। अब आते हैं इन्फ्रिंजमेंट केसेस पे। एप्पल वर्सेस सैमसंग। देयर वाज अ केस एप्पल वर्सेस सैमसंग इन डिजाइन सेक्शन आल्सो, दैट वाज रिगार्डिंग द round structure, the curved structure of the mobile phones and the inner layout of the Apple mobile phones. Ab again, Apple also filed a patent infringement case against Samsung for scrolling with one finger, zooming with 2 fingers,
and that call picking feature left to right जो हम करते हैं. So in 2012 again Apple filed a patent infringement case against Samsung, and in 2013 Samsung lost this case and has to pay $539 million to Apple for in their royalties. इतनी royalties पे करनी पड़ी, 539 million to Apple royalties पे करनी पड़ी Samsung को, Apple को. एक और केस है अभी चल ही रहा है ये, इसका कोई अभी डिसीजन नहीं आया. ये है Core Photonics versus Apple. Core Photonics filed a case against Apple regarding their telephoto lens or double lens in iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus, and iPhone X. So Core Photonics is saying that we are discussing this technology with Apple from 2012, and Apple, without their permission, without the permission of Core Photonics, had launched the products and used the technology of Core Photonics in their products. So Core Photonics is now asking for royalties from Apple. So टेक क्या थी? टेलीफोटो लेंस एंड ऑप्टिकल जूम मेथड. सो आज की डेट में किसी भी अगर आपकी आईपी प्रोटेक्टेड है एंड कोई another person wants to use your technology, so he or she can license from you, और अगर unethically कोई यूज कर रहा है, so you can file an infringement case against the company or that individual. एक नया हाइपरलिंक ओपन करने के लिए भी एक पेटेंट है माइक्रोसॉफ्ट पे. जैसे हम एक नया पेज खोलते हैं, नई विंडोज खोलते हैं, उसके लिए भी एक पेटेंट है. आप Amazon, फ्लिपकार्ट वगैरह पे ई कॉमर्स वेबसाइट पे आप जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, हम 1 क्लिक पे करके एक Amazon के पास पेटेंट है इंडिया में, वर्ल्ड वाइड है उनके पास इस पे पेटेंट. हर एक कंट्री में उनके पास इसके पास इस चीज का पेटेंट. एप्पल, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, सब उसको उन्होंने लाइसेंस करवा रखा है. क्या है कि आप एक प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं और आपकी वो आइटम सिलेक्ट हो जाती है कि आपको ये परचेज करना है या नहीं करना. इसके ऊपर भी पेटेंट है और इस Amazon सबको इसका लाइसेंस देता है यूज करने के लिए. मतलब Amazon रॉयल्टीज खाता है. माइकल जैक्सन का एक पेटेंट है फॉर देयर फेमस स्टेप. तो पेटेंट की कहीं लिमिट नहीं है, आप किसी भी चीज पे आप फाइल कर सकते हो. कई मिथ है regarding patents when we are filing for patents. First, it is compulsory to have a prototype. सबसे बड़ा मिथ है, कहीं भी मैं जाता हूँ, किसी भी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में मैंने विजिट किया है, सबसे बड़ा मिथ है कि a prototype is necessary. प्रोटोटाइप कहीं भी नेसेसरी नहीं है. We need just your invention, आइडिया होना चाहिए. आपका प्रोटोटाइप तब नेसेसरी है जब आप कमर्शियलाइजेशन के लिए जा रहे हो, तब आपको प्रोटोटाइप की जरूरत है. अगर आप पेटेंट, अपनी इन्वेंशन, आपका आइडिया प्रोटेक्ट कराना, उसमें आपको प्रोटोटाइप की कोई जरूरत नहीं. बस आपको ये डिफाइन करना है कि हाउ योर इन्वेंशन इज वर्किंग and how your invention is novel from different current inventions. कहीं ये नहीं लिखा कि आपको फॉर फाइलिंग ऑफ अ पेटेंट या आपको पेटेंट तभी ग्रांट होगा कि प्रोटोटाइप की जरूरत है. कभी नहीं. ना जब आप फाइलिंग कर रहे हैं, ना आपको तब जरूरत है, ना जब आपको पेटेंट ऑफिस बुलाया जाएगा तब आपको जरूरत है. आपको प्रोटोटाइप की कोई जरूरत नहीं है टिल द टाइम आप कमर्शियलाइजेशन के लिए नहीं जाते. अगर आप कमर्शियलाइजेशन के लिए ऑप्ट करते हो, तब आपको प्रोटोटाइप की जरूरत है कि आपका प्रोडक्ट कैसा दिखता है, कैसा काम करेगा. फॉर फाइलिंग ऑफ अ पेटेंट यू डोंट नीड अ प्रोटोटाइप. नॉर्मल ही आप एक पेटेंट फाइल कर सकते हो, ग्रांट भी हो जाएगा.
सेकेंड मैथ है कि बाय जस्ट फाइलिंग अ पेटेंट एप्लीकेशन यू विल बी ग्रांटेड अ पेटेंट। इसको मैं अभी डिस्कस करूंगा जब मैं आपको पेटेंट फाइलिंग के बारे में बताऊंगा। एक मेथड है कि डोमेन स्पेसिफिक ही आप पेटेंट फाइल कर सकते हो, मतलब कि आप कंप्यूटर्स के हो तो कंप्यूटर्स पे फाइल कर सकते हो, या मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी बंदा कभी भी किसी भी डोमेन स्पेसिफिक कुछ भी फाइल कर सकता है, आर्ट से, इंजीनियरिंग से रिलेटेड, नॉर्मल मैकेनिकल डोमेन से रिलेटेड कुछ भी आप फाइल कर सकते हो, ऐसा कहीं लिमिट नहीं है। और एक मेथड है कि पेटेंट एनफोर्सेबल वर्ल्ड वाइड। पेटेंट्स आर टेरिटोरियल इन नेचर, मतलब कि जहाँ पे आप फाइल कर रहे हो, इंडिया में फाइल कर रहे हो तो इंडिया में ही वो एक्टिव है, इंडिया में ही एनफोर्सेबल है, बाहर एनफोर्सेबल नहीं है। You have to file for different application worldwide to make it enforceable into other countries. But if you are filing in India, it is only enforceable in India, not in any other country. Any questions regarding patents till now? सर अगर कोई पेटेंट मतलब अमेरिका में पेटेंट किसी ने रजिस्टर्ड करा रखा है और इंडिया में नहीं करा रखा है, क्या उसको हम इंडिया में कर सकते हैं No, उनसे कॉपी करके या कुछ भी करके? नहीं सर, अच्छा क्योंकि सर ठीक है पहले पब्लिक डोमेन में आ रखा है ना। ओके 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 सर। नहीं जैसे सर आपने अभी बोला था ना कि इंडिया में ही रजिस्टर्ड हुआ है तो इंडिया में ही रहेगा, बाहर नहीं। जैसे वो अमेरिका में रजिस्टर्ड हो रखा है, अगर उसको हम अमेरिका से बाहर लेके आना चाहें, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू। नहीं, आप यूएस का बंदा इधर रजिस्टर करवा सकता है, आप भी बाहर रजिस्टर करा सकते हो। मैं कह रहा हूँ आप नहीं अच्छा उससे उस पे ले सकते, वो बंदा इंडिया में रजिस्टर करा सकता है। अच्छा 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 मतलब आपके पास ठीक है। इंडिया में पेटेंट है अगर, ठीक है, हम्म ऑल ओवर वर्ल्ड कोई उस पे पेटेंट नहीं ले सकता किसी भी कंट्री में, लेकिन आप दूसरी कंट्रीज में जाके ले सकते हो। अच्छा ठीक है सर। सर माय क्वेश्चन इज कि जैसे आपने बताया कि पेटेंट के लिए एज सच कोई प्रोटोटाइप की जरूरत नहीं है, एन आइडिया इज सफिशिएंट। तो अब मान लीजिए हम लोग वी आर टीचर्स, हम लोग क्लास में टीच करते हैं एंड आई हैव ए यूनिक आइडिया, एक नया पर्सपेक्टिव है क्लास में टीच करने का जिसका कुछ अलग आउटकम आएगा, क्या हाँ जी, ये आइडिया भी पेटेंट हो सकता है? आइडिया क्या अचीव करवा रहा है कि आपकी मतलब कि जो भी ह्यूमन एफर्ट है उसको हाँ रिड्यूस करवा रहा है, सबसे पहली बात। ठीक है, वो अचीव कैसे हो रहा है? ओके कोई ना कोई मशीन एलिमेंट्स होंगे, कुछ सिस्टम एलिमेंट्स होंगे जिसकी बेसिस पे आप कह रहे हो, या मैं कहूँ कोई कैमराज वगैरह होंगे जिसके बेसिस पे आप अचीव करवाना चाह रहे हो। अगर वो नॉवल है तो बिल्कुल हम पेटेंट तो फाइल कर ही सकते हैं। अच्छा नहीं, बेसिकली मैं आपको सिनेरियो बता रहा हूँ, एज सच तो आइडिया नहीं है मेरे पास, बट आई एम गिविंग यू द सिचुएशन कि हाँ, मैं क्लासरूम आइडिया है, टीचिंग करता हूँ आइडिया हाँ, और हाँ मैं आइडिया है क्लासरूम अगर टीचिंग आपके करता पास। हूँ एंड ऑन द बेसिस ऑफ माई रिसर्च या ऑन द वर्किंग जो भी मैं यूज कर रहा हूँ, उस वर्किंग से रिजल्ट्स ये आ रहे हैं कि द रिजल्ट हैज इम्प्रूव्ड इन ए वे, तो क्या वो आइडिया ही पेटेंट हो सकता है कि उसके लिए सर सॉर्ट वो ऑफ कोई मुझे हाँ आइडिया अचीव कैसे कर रहे हो, वो पेटेंट होगा ना। आइडिया तो आपका हो गया, वो अचीव कैसे करवा रहे हाँ हो हाँ उस हाँ चीज, ठीक है। You mean हो सकता है, in terms हो of सकता है। results, in terms of yes, okay. जैसे एक आपके पास आइडिया आया, आप आइडिया से कुछ अचीव करवा रहे हो, ठीक है, आप वो पेटेंट जी करा रहे हो, लेकिन अचीव कराने तक का जो प्रोसीजर है, ठीक है, मैं कहूँ ए से जेड जाना है मैंने, ठीक है, जी ए से जेड जाना है, तो ए से जेड जाने के बीच में मैं क्या अपनी टेक यूज कर रहा हूँ, या क्या फंक्शंस या क्या मेथड्स है, जैसे वहां पे मैं जल्दी पहुंच सकता हूँ जेड पे, ठीक है। तो मैं क्या जी अचीव, मेरा आइडिया है ए से जेड पहुंचना, लेकिन मैं अचीव कैसे करा रहा हूँ, ठीक है। जो अचीव कराने का okay. तरीका है और जल्दी पहुंचने का तरीका है वो क्या है, वो आपका पेटेंट फाइल हो सकता है, वो ठीक है। basically वो पेटेंट फाइल हो सकता है, right हाँ right जी, right. एनी अदर Thank you क्वेश्चंस? thank शैल आई कंटिन्यू? you. जी Yes, सर। please. सो मैंने कुछ अभी ये सेकंड था, बाय जस्ट फाइलिंग फॉर अ पेटेंट एप्लीकेशन दैट डजंट मीन यू विल गेटिंग अ पेटेंट। अब मैं आपको समझाता हूँ कि इंडियन पेटेंट लॉ का प्रोसीजर क्या है, इंडियन पेटेंट ऑफिस का प्रोसीजर क्या है। बेसिकली
वी आर वर्किंग विद मेनी यूनिवर्सिटीज, सो वो हमें आइडिया फॉर्म्स वगैरह सबमिट करते हैं, जिसके बेसिस पे हम रिसर्च करते हैं और प्रोविजनल और नॉन प्रोविजनल एप्लीकेशन ड्राफ्ट करते हैं. सो अब इंडियन पेटेंट ऑफिस का प्रोसीजर क्या है कि कोई भी एप्लीकेशन है, प्रोविजनल नॉन प्रोविजनल, ठीक है. प्रोविजनल एप्लीकेशन होती है जिसमें आपको आपकी सिर्फ आईडी फाइल कर देते हैं ना, उसमें पूरी डिस्क्रिप्शन नहीं होती, डायग्राम्स नहीं होते, कुछ नहीं होता, आपका आइडिया होता है. इसमें क्या होता है, आपको 12 मंथ्स का ग्रेस पीरियड मिलता है कि बिटवीन 12 मंथ्स आप पूरी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, जिसमें आपके क्लेम्स वगैरह सब कुछ होते हैं. क्लेम्स, डायग्राम्स, बैकग्राउंड, साइटेड रेफरेंसेस सब कुछ होते हैं. अब नॉन प्रोविजनल हम जनरली फाइल करते हैं. नॉन प्रोविजनल में आपके डिस्क्रिप्शंस आ गई, आपका क्लेम्स आ गए, जो आपका क्रक्स ऑफ द पेटेंट है. जब फाइल करते हैं तो हम इंडियन पेटेंट ऑफिस में फाइल के, इट टेक्स 18 months फॉर अ पेटेंट एप्लीकेशन टू गेट पब्लिश्ड. मतलब आपने आज फाइल किया, सपोज 1 मई 2020 में फाइल किया, आज की डेट से 18 मंथ्स के बाद आपकी पेटेंट एप्लीकेशन फाइल होगी. अभी ये एग्जामिन नहीं हुई, अभी ये ग्रांट नहीं हुई, ये सीधा पब्लिश हुई. अब ये क्या है कि टिल नाउ, टिल पब्लिकेशन कोई एग्जामिनेशन नहीं होती, कोई एग्जामिनर आपकी एप्लीकेशन देखता भी नहीं है. तो अगर एग्जामिनर एग्जामिनेशन आपकी जो एप्लीकेशन है वो देख ही नहीं रहा, तो आप मतलब कि कुछ भी पब्लिश हो जाएगा. मतलब कि कोई इन्वेंशन है जिसके पहले से प्रायर आर्ट्स अवेलेबल है, वो भी पब्लिश हो जाएगी. इसमें कहीं रूल नहीं है कुछ, क्योंकि यहाँ तक एग्जामिनेशन हुई ही नहीं. आफ्टर पब्लिकेशन, फिर विद इन अ पीरियड ऑफ 48 मंथ्स से ये है 30 to 48 मंथ्स के बीच में आप एग्जामिनेशन के लिए फाइल कर सकते हो. आप पेटेंट ऑफिस में फिर से फी पे करते हो कि हमारी जो हमने पेटेंट एप्लीकेशन फाइल की थी उसको एग्जामिन करना स्टार्ट करो. तो आपकी एग्जामिनेशन स्टार्ट होती है. एग्जामिनर आपकी पर्टिकुलर डोमेन का एग्जामिनर आपको अलॉट हो जाता है, ठीक है. तो एग्जामिनर आपकी एप्लीकेशन एग्जामिन करना स्टार्ट करता है. सो वो ऑब्जेक्शन रेज करता है आपका जो एग्जामिनर है और जो आपका अटॉर्नी होगा या आप होगे, आप दोनों के बीच में ऑब्जेक्शंस और जो भी रिजल्ट्स है, मतलब कि आपकी तरफ से कम्युनिकेशन, उनकी तरफ से कम्युनिकेशन, ये चलता रहता है. एक ऑब्जेक्शन हो सकती है, मल्टीपल ऑब्जेक्शन हो सकती है. ऑब्जेक्शन हो सकती है कि पेटेंट अटॉर्नी कहता है, जो एग्जामिनर है वो कहता है कि मुझे इन्वेंशन समझ नहीं आती, आप इसको थोड़ा और डिस्क्राइब करके दो, पहली ऑब्जेक्शन. या दूसरा कहता है ये नॉवल नहीं है, इसकी जो क्लेम्स है बहुत ब्रॉड है, इसको नैरो करके दो. मल्टीपल वो हो सकती है, एग्जामिनेशन हो सकती है. उसके बाद आफ्टर एग्जामिनेशन, जब आपकी एग्जामिनेशन सब हो गई, क्या कहते हैं, ऑब्जेक्शन रेज हो गई, आपको देखा जाता है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो इंडियन पेटेंट लॉ की सेक्शंस को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही. अगर वो सेटिस्फाई कर रही है तो ही पेटेंट ग्रांट होता है, नहीं तो रिजेक्ट हो जाता है. अब दिस ओवरऑल प्रोसेस टेक्स अराउंड 4 years in a normal procedure. In a normal procedure, it takes 4 years. अब मैं कहता हूं कि पब्लिकेशन, व्हेन आई वाज सेइंग पब्लिकेशन टेक्स 18 months, इसमें एक है कि आप अर्ली पब्लिकेशन करा सकते हैं विद इन पीरियड ऑफ 14 days. उसके लिए फीस होती है. 14 days to 1 month आप अपनी एप्लीकेशन पब्लिश करा सकते हैं, पेटेंट एप्लीकेशन पब्लिश करा सकते हैं. और ऐसे ही आप अपनी जो आपकी पेटेंट एप्लीकेशन है वो आप अर्ली एग्जामिन भी करा सकते हैं. उसके लिए भी अलग से फीस है और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है. सो अर्ली पब्लिकेशन या एक्सपर्टाइट पब्लिकेशन एंड एक्सपर्टाइट एग्जामिनेशन के लिए भी कुछ ना कुछ रूल्स एंड सेक्शंस है. अब आपका सपोज पेटेंट भी ग्रांट हो गया, लेकिन वो अपोज भी हो सकता है, रिवोक भी हो सकता है. मैं आपको एग्जांपल देता हूं.
कि सपोज एक होती है प्री ग्रांट ऑपोजिशन। प्री ग्रांट ऑपोजिशन होती है कि जब आपका पेटेंट एप्लीकेशन पब्लिश हुई थी, जब वो पब्लिक डोमेन में आई, तो कोई ना कोई आपका कॉम्पिटिटर या कोई XYZ पर्सन इंडिविजुअल उठ के पेटेंट ऑफिस को या पेटेंट एग्जामिनर को एक लेटर या एक ईमेल भेजता है। वो कहता है कि ये एग्जामिनेशन पहले से नोन है, मैं इसकी फाइलिंग डेट या प्रायोरिटी डेट से पहले यूज कर रहा हूँ। उसके बाद कुछ लीगल इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट होता है जो प्रूफ कर पाए कि ये पहले से अवेलेबल है, या XYZ ऑपोजिशन हो सकती है कि ये इसको पेटेंट नहीं ग्रांट होना चाहिए। पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन होती है कि आपका कॉम्पिटिटर, मैं आज की डेट में मैं सपोज मैं रोबोटिक क्लीनिंग सिस्टम पे कोई पेटेंट ग्रांट हो जाता मुझे, ठीक है। अब दूसरी कंपनी जो इसी डोमेन रोबोटिक क्लीनिंग सिस्टम पे काम कर रही है, वो पेटेंट ऑफिस को एक लेटर लिखती है कि ये जो पेटेंट मिला है ये मतलब कि इनवैलिड है। इनवैलिड मतलब ये प्रॉपरली एग्जामिन नहीं हुआ। अगर वो फाइल करता है तो पेटेंट की फिर से एग्जामिनेशन होती है, और एग्जामिनेशन के टाइम पे अगर कहीं पे भी ये पेटेंट एग्जामिनर को लगता है कि जो पेटेंट हमने ग्रांट किया था वो गलत ग्रांट कर दिया है, तो आपका पेटेंट रिवोक हो जाता है। मतलब पेटेंट ग्रांट होने के बाद भी रिवोक हो सकता है, पहली बात। दूसरा सिनारियो ये है कि जैसे आजकल कोविड-19 पे काफी इन्वेंशंस आ रही है, तो मैं कहता हूँ कोविड-19 पे कुछ ऐसी वैक्सीन पड़ी हो इंडियन पेटेंट के अंदर, डाटाबेस के अंदर कुछ ऐसी वैक्सीन पड़ी हो जिसके बेसिस पे जो ट्रीटमेंट के रिजल्ट है वो 100% आने लग जाए या 50% आने लग जाए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस पेटेंट को भी रिवोक कर सकती है कभी भी। तो वो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में है कि कभी भी कोई भी पेटेंट रिवोक कर सकती है, कि वो एक लेमन पर्सन को यूज में आ जाए जैसे कोविड-19 की सिचुएशन में, या एक कोविड या फिर एक नॉर्मल टर्म्स में आपका कॉम्पिटिटर कोई फाइल कर सकता है कि ये जो पेटेंट आपको ग्रांट हुआ है वो इनवैलिड है। तो और दूसरी बात, हम कहते हैं कि हमें पेटेंट मिल गया, एवरीवन से दैट हमें पेटेंट मिल गया, बट किसी को पेटेंट मिलता नहीं है। पहले सिर्फ पेटेंट एप्लीकेशन पब्लिश होती है, पेटेंट पब्लिश नहीं होता, पेटेंट पब्लिश होती है, उसके रिगार्डिंग आपको एक नंबर मिल जाता है और उसको कोई भी पब्लिश करा सकता है। मतलब अगर आपके कॉलेज में अराउंड 3000 स्टूडेंट्स हैं, तो आपके 3000 आप एप्लीकेशन फाइल करो तो 3000 एप्लीकेशन पब्लिश भी हो जाएंगी। मैं एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ एमिटी का। एमिटी के ओवरऑल 2900 पेटेंट एप्लीकेशंस है। मतलब बड़ा नाम होता है कि उस चितकारा हो गया, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी हो गया, एमिटी यूनिवर्सिटी हो गया, उन्होंने बहुत पेटेंट एप्लीकेशंस फाइल की है, बट किसी को पता है कि उनका ग्रांट परसेंटेज कितना है? एमिटी का 2900 में से ओनली 24 पेटेंट्स आर बीइंग ग्रांटेड, ओनली 24, क्योंकि पेटेंट एप्लीकेशन तो हर कोई पब्लिश हो रही है, वहां तक तो कोई एग्जामिनेशन ही नहीं हुई। अगर आपको मैं एक डाटाबेस बताता हूँ, आप जाके एमिटी के उससे सर्च करना है, किसी जो भी एक कॉलेज के उससे सर्च करना, एक एक पेज की एप्लीकेशन उन्होंने फाइल की हुई, एक एक पेज की, जिसमें एक क्लेम, थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन, थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट और एक फिगर, क्योंकि पब्लिकेशन के टाइम तक कोई भी एग्जामिनेशन नहीं होगी। सो पेटेंट एप्लीकेशन पब्लिश करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर कोई भी प्रायर आर्ट है, मैं आप एक पेपर पे कुछ अपनी इन्वेंशन लिख के भी मैं दे दूंगा, वो भी पब्लिश हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि ग्रांट हो जाए। ग्रांट वो तभी होगी जब आप फीस पे करोगे एग्जामिनेशन की, ऑपोजिशन आएगी, ऑब्जेक्शंस आएंगे, आपके और एग्जामिनर्स के बीच में कुछ कम्युनिकेशन होगी, कुछ हो सकता है कोई ऑब्जेक्शंस हो ही ना, डायरेक्ट ग्रांट हो जाए आपका पेटेंट। ये नहीं कि ऑब्जेक्शंस होना जरूरी है, ऐसा भी कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ पब्लिकेशन के बेसिस पे पेटेंट ग्रांट नहीं होता। कोई भी बंदा, कोई भी any layman person can publish
हिज और हर पेटेंट एप्लीकेशन। कोई इसमें बड़ा रूल नहीं है, पेटेंट एप्लीकेशन कोई भी पब्लिश कर सकता है। अभी जैसे मैं बता रहा था प्रोविजनल और नॉन प्रोविजनल। बेसिकली प्रोविजनल होती है कि आप अभी श्योर नहीं हो अपनी इन्वेंशंस के रिगार्डिंग कि इसका आउटकम क्या आएगा, तो आप प्रोविजनल फाइल कर देते हो कि अपना आइडिया प्रोटेक्ट कर लिया, मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, तो ये अचीव कैसे होगा, ये मैं 12 महीने के अंदर प्रॉपर डिस्क्रिप्शन के साथ फाइल कर दूंगा। एक तो ये हो गया। नॉन प्रोविजनल होता है आप श्योर हो, जैसे हम क्या करते हैं, हम नॉन प्रोविजनल लेते हैं, मतलब कि आइडिया लेते हैं, उस पर हम ड्राफ्टिंग करते हैं और उसको हम डायरेक्ट नॉन प्रोविजनली फाइल कर देते हैं। उसमें क्या होता है कि सिर्फ क्लेम्स चेंज होते हैं, मतलब क्लेम्स ब्रॉड या नैरो होते हैं अकॉर्डिंग टू दी अटॉर्नी। और नॉन प्रोविजनल में ये होता है आपको 12 मंथ्स का टाइम मिल जाता है उस पर वर्कआउट, अपनी इन्वेंशन पे वर्कआउट करने का, ताकि आप पूरे 100% श्योर हो जाओ कि इस पे पेटेंट आगे परस्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और कई जगह होता है कि नॉन ड्राफ्टिंग के वैसे नॉन प्रोविजनल एक तरह से आर्ट है, ड्राफ्टिंग आर्ट है। जो ड्राफ्टर है वो आपकी इन्वेंशन निकालता है आपके आइडिया में से, जो कि हम कर रहे हैं अभी। तो मैं सजेस्ट करता हूं कि आप नॉन प्रोविजनल फाइल करो, क्योंकि इसमें होता है कि सीधा फाइलिंग आ जाएगी, क्योंकि आप पहले नॉन प्रोविजनल फाइल करोगे, 12 मंथ्स का टाइम लोगे, फिर नॉन प्रोविजनल फाइल करोगे, फिर 18 मंथ्स बाद जाके पब्लिश होगी। आप सीधा नॉन प्रोविजनल फाइल करो, ठीक है। उसमें क्या है, आपका डेट प्रोटेक्ट होगी, आपकी इन्वेंशन प्रोटेक्ट होगी, अब आप कमर्शियलाइजेशन के लिए भी जा सकते, क्यों, आपका आइडिया प्रोटेक्ट हो गया। आइडिया प्रोटेक्ट हो गया, अब कोई भी कंपनी इन्वेस्ट करना चाहेगी तो वो देखेगी कि आपका आइडिया नॉवल है, और आपका आइडिया प्रोटेक्टेड है कि नहीं। नॉवल की तो बात की बात है, अगर आपका आइडिया प्रोटेक्टेड है मतलब आप सेफ हो, मतलब और कोई नहीं क्लेम कर सकता आके कि ये आइडिया पहले से किसी के पास है। क्यों, आपके पास फर्स्ट टू फाइल आ गया, फर्स्ट टू क्लेम आ गए कि आपने पहले इस चीज एक इन्वेंशन के लिए फाइल किया था, तो कमर्शियलाइजेशन के लिए आप ही वैलिड हो, ना कि और कोई। एक पेटेंट एप्लीकेशन या ग्रांटेड पेटेंट्स में ये कंपोनेंट्स होते हैं, टाइटल हो गया, एब्स्ट्रैक्ट हो गया, फील्ड ऑफ द इन्वेंशन हो गया, बैकग्राउंड हो गया, समरी ऑफ द इन्वेंशन हो गया, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन होगी, क्लेम्स होगी, ड्राइंग्स होगी। ये सारा बेसिकली हम देखते हैं, आपकी तरफ से सिर्फ हमें आइडिया चाहिए होता है कि आपका आइडिया क्या है, आपकी इन्वेंशन क्या है, और कुछ नहीं चाहिए। ये सब जो ड्राफ्टिंग है, फिगर्स हैं, इलस्ट्रेशंस हैं, सब वेरिस्पायर देखता है। अब नॉन पेटेंटेबल आइटम्स कौन कौन सी होगी? एक तो फर्स्ट कहता है कि ऑब्वियस इन्वेंशन होगी, कि जो पहले से नोन है, ए और बी प्लस सी, ए प्लस बी इक्वल टू सी, नहीं, मतलब कि पहले से दो हैं उसको मिक्स करके थर्ड इन्वेंशन बना दी, नहीं। कोई भी इन्वेंशन जो इंजूरियस है ह्यूमन को, प्लांट लाइफ को, एनिमल लाइफ को, वो भी नहीं। कोई डिस्कवरी, उस पर भी पेटेंट नहीं मिल सकता। कोई भी ऑलरेडी नोन सब्सटेंस है, उसमें मैं कहूँ डिस्प्रिन, एक डिस्प्रिन का एग्जांपल लेता हूं मैं, कि डिस्प्रिन में एबीसी कंपोनेंट्स है, तो आप उसमें सिर्फ एक डी डाल के कहते हो कि मैं एक और सेकंड टाइप ऑफ डिस्प्रिन लेके आ रहा हूँ, बट आपने उसमें रिड्यूस तो नहीं किया ना, आपने ऐड एक मिक्सचर ऐड कर दिया, एक कंपोनेंट ऐड कर दिया, कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ा दी, पर उसमें ना उसकी एफिशिएंसी डिक्रीज हुई, ना कुछ डिक्रीज हुआ, और आप सिस्टम लेके आ गए कि मैं इस पे मुझे पेटेंट मिलना चाहिए। मेथड ऑफ हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर, आई एम सेइंग मेथड ऑफ, मतलब खेती करने का तरीका, उस पे पेटेंट नहीं मिलेगा। लेकिन एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर डिवाइसेस पे मिल सकता है, लेकिन मेथड ऑफ डूइंग एग्रीकल्चर पे कभी नहीं मिलेगा। ये तो हर एक का अपना अपना तरीका होता है कैसे खेती करनी, कैसे नहीं करनी, लेकिन मशीन्स जो हैं एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर की, उस पे पेटेंट मिल सकता है। अरेंजमेंट एंड रीअरेंजमेंट और डुप्लीकेशन ऑफ नोन सब्सटेंस, वही ए प्लस बी या बी प्लस ए, अरेंजमेंट एंड रीअरेंजमेंट ऑफ समथिंग। एनी मैथमेटिकल और बिजनेस मेथड पेटेंट, इंडिया में किसी भी बिजनेस मेथड पेटेंट पे बिजनेस मेथड पे पेटेंट नहीं मिलता। तो अभी जो ओला, उबर, जोमेटो, स्विगी, ये सारे बिजनेस मेथड है, तो क्या ये काम कैसे कर रहे हैं फिर? किसी, अगर मैं इस क्लॉज पे जाऊं, ये कहता है एनी मैथमेटिकल और बिजनेस मेथड पे हमें पेटेंट नहीं मिलेगा, बट
ओला, उबर, जोमेटो, स्विगी, जितने भी ये सर्विस प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, इस सबके पास पेटेंट है। वो कैसे? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। इसमें एक क्लॉज है, वो कहता है कि बिजनेस मेथड पे कभी पेटेंट नहीं मिलेगा, लेकिन क्लॉज कहता है कि बिजनेस मेथड हैविंग सम टेक्निकल स्पेसिफिकेशन कैन हैव अ पेटेंट। आपको एग्जांपल देता हूँ। जोमेटो है, ये बिजनेस मेथड है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। सर्विस क्या प्रोवाइड कर रहा है? फूड सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। अब इसमें टेक्निकल स्पेसिफिकेशन लगाता हूँ। हमारा एक मोबाइल डिवाइस है जो यूजर डिवाइस हो गया, ये क्या करता है? दूसरे यूजर डिवाइस से कनेक्ट होता है, और दूसरा यूजर डिवाइस भी एक मोबाइल डिवाइस हो गया। और दूसरे यूजर डिवाइस से कैसे कनेक्ट होता है? एक डिस्टेंस विद इन रीजन ऑफ 33 किलोमीटर, 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर के अंदर चेक करता है कि कोई दूसरा यूजर डिवाइस अवेलेबल है कि नहीं है, या 3 किलोमीटर के अंदर कौन से मल्टीपल यूजर डिवाइस अवेलेबल है, उनके रेटिंग्स क्या है, गेटवे, पेमेंट गेटवे कौन से यूज कर रहे हैं। इसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि हमें कहाँ से फूड या कहाँ से हमने कुछ ऑर्डर करना है कि नहीं करना। तो ये टेक्निकल मेथड यूज हो रहा है एक बिजनेस मेथड के अंदर, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन यूज हो रही है। इसमें टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या है कि जीपीएस यूज हो रहा है, हमारा मोबाइल डिवाइस यूज हो रहा है, हमारा पेमेंट गेटवेज यूज हो रहे हैं, ठीक है, हमारे सेंसर्स यूज हो रहे हैं। तो ये टेक्निकल स्पेसिफिकेशन एक बिजनेस मेथड पैटेंट के अंदर। एंड एक और है, एल्गोरिथम्स पे कभी पैटेंट नहीं मिलता, मेथड ऑफ प्लेइंग गेम्स पे कभी पैटेंट नहीं मिलता, डिफरेंट वेज ऑफ प्रेजेंटिंग ऑफ एन इंफॉर्मेशन, इस पे कभी पैटेंट नहीं मिलता। सो और एक सेक्शन 4 है एटॉमिक एनर्जी, रेयर अर्थ मटेरियल्स पे कभी इंडिया में पेटेंट, इंडिया की बात कर रहा हूँ, इन चीजों पे इंडिया में पेटेंट नहीं मिलता। आप फाइल कर सकते हैं पर आपको पेटेंट नहीं मिलेगा। कोई भी बायोलॉजिकल और प्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स पे भी पेटेंट नहीं मिलता। सो ये काफी सारे क्राइटेरियाज हैं इंडियन पेटेंट लॉ के। सेक्शन 3 कहते हैं, इंडियन पेटेंट लॉ का सेक्शन 3 है बेसिकली कि किस किस पे पेटेंट नहीं मिलना। तो ये बेसिक है। अब आईपी कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपकी इन्वेंशन के लिए? एक क्वेश्चन आया था फॉर्च्यूनर से रिलेटेड कि फॉर्च्यूनर के डिजाइन को 14 इयर्स हो चुके हैं, तो अब कोई भी यूज कर सकता है कि नहीं कर सकता? एक कंपनी थी, आपको एक एग्जांपल देता हूँ, नोकिया, एचटीसी, मोटरोला, ये सारी एक ना एक टाइम पे बैंकरप्ट हो गई थी, ठीक है, लेकिन फिर से रिवाइव हो गई ये चीज। कैसे होगी वो रिवाइव, कैसे हुई, कैसे किसी ने सोचा? अब नॉर्मल कंपनीज क्या करती हैं? नोकिया की मैं बात करूं, नोकिया 2012 में बैंकरप्ट हो गई थी। उसने अपना एक मोबाइल सेक्शन माइक्रोसॉफ्ट को बेचा था सिर्फ, लेकिन बाकी और कुछ नहीं बेचा। अब नोकिया कैसे रिवाइव हुई? नोकिया के पास 1985 से वायरलेस कम्युनिकेशन पे पेटेंट थे। अब मैं उस टाइम मैंने एक बात की थी फॉर्च्यूनर की कॉन्टिन्यूशन एप्लीकेशन। नोकिया ने क्या किया था? बहुत स्मार्ट प्ले किया था नोकिया, एचटीसी, मोटरोला ने। उन्होंने बहुत स्मार्ट प्ले किया था कि पहली अपनी इन्वेंशन निकाली 1985 में, जो बेसिक थी। अब क्या हुआ, 1987 में उन्होंने उस बेसिक इन्वेंशन पे और मॉडिफिकेशन की और वर्कआउट किया, और 1987 में एक और कॉन्टिन्यूशन पेटेंट एप्लीकेशन फाइल कर दी। अब एक नॉर्मल सेंस में जो पेटेंट अगर 1985 में फाइल हुई थी, एप्लीकेशन फाइल हुई थी, उसकी वैलिडिटी थी 2005 तक। ऐसे ही जो 1987 में फाइल हुआ, उसकी वैलिडिटी आई 2007 तक। ऐसे ही करते करते उन्होंने अपना पेटेंट पोर्टफोलियो इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया कि वो आज की डेट में भी नोकिया का पेटेंट पोर्टफोलियो बाकी कंपनी से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो आज भी रॉयल्टीज खा रहा है वायरलेस कम्युनिकेशन के। मतलब कि एचटीसी हो गया, हमारा मोटरोला हो गया, या एरिक्सन हो गया, एरिक्सन 2G 3G वायरलेस कम्युनिकेशन, जीपीआरएस, सीडीएमए, इतने पेटेंट्स है उसके। उनका माइक्रोमैक्स के साथ भी, Xiaomi के साथ भी इंफ्रिंजमेंट केस चल रहा है कि यूजिंग देयर टेक ऑफ 2G 3G
GPR है, CDMA, विदाउट परमिशन, विदाउट लाइसेंस वो यूज कर रहे थे, तो उसके लिए भी एरिक्सन का भी बाकी मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के साथ केस चल रहा है। तो ये आईपी ट्रांजैक्शंस ऐसे हो रही है कि आपका पेटेंट आपको पैसे दिलवा रहा है, आपके पास कोई पेटेंट है, आपके पास कोई इन्वेंशन है, आपने आज प्रोटेक्ट कर ली, मे बी वो आज यूजफुल ना हो। ये जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं पीपीई किट्स का आज की डेट में, या सैनिटाइजर का मैं एग्जांपल दूं कि आज से 3 बैक मतलब जनवरी तक या फरवरी तक कोई सैनिटाइजर्स को पूछता भी नहीं था, बट आज की डेट में सबसे ज्यादा जो डिमांड है वो सैनिटाइजर्स की है। उसमें कितना अल्कोहल कंटेंट है उसके ऊपर है, या एक डेटॉल, आप अगर किसी को नोन हो तो डेटॉल और लाइफ बॉय में अभी केस चला है रिसेंटली, क्योंकि डेटॉल ने अपने प्रोडक्ट पे लिखा था फॉर ट्रीटिंग कोरोना वायरस। तो सो लाइफ बॉय ने हिंदुस्तान लीवर ने केस किया अगेंस्ट डेटॉल कि ये ऐसा कोई ट्रीटमेंट आया नहीं, तो ये कैसे लिख सकते हैं अपने कोरोना वायरस के लिए, कैसे लिख सकते हैं। ऐसे ही काफी सारी, कोडैक की बात करूं, कोडैक क्या खत्म हो गया क्या? आज की डेट में अगर आप चेक करोगे जापान में जो फ्यूजी फिल्म सबको पता है, एक प्रिंटिंग उसमें थी, फ्यूजी फिल्म कोरोना वायरस की वैक्सीन्स बना रही है। मतलब एक सिंगल डोमेन मल्टीपल डोमेन्स में घुसे हुए हैं। मतलब सिर्फ वो उनका फ्रंट फेस, अगर मैं नोकिया करूं, फ्रंट में वो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में है, लेकिन बैकएंड में वो इतनी चीजों पे उन्होंने पैटेंट ले रखा है, उन्हीं चीजों पे वो रॉयल्टीज खा रहे हैं। ऐसे ही मैं IMT की बात करूं, आपके इसमें होम ऑटोमेशन पे भी है, वेरियस अदर प्रोडक्ट्स भी हैं। मतलब आपका फ्रंट लाइन जो है एजुकेशन सेक्टर है, लेकिन बैकएंड पे आपके पास इतनी प्रोटेक्शन हो जाए, इतनी रॉयल्टीज आने लग जाए कि किसी को पता ही नहीं है कि बैकएंड पे IMT रॉयल्टीज में खेल रहा है। सो वैल्यूएशंस होती हैं कि आपका प्रोडक्ट कैसे काम कर रहा है, कितना पुराना है, कितनी एनफोर्सेबिलिटी है, कहाँ एनफोर्सेबिलिटी है, कौन कौन सी डिफरेंट टेक्स्ट पे काम कर रहा है। मोनेटाइजेशन कैसे होती है? पेटेंट सेलिंग, मतलब कि कहते हैं ना, सेल परचेज, डायरेक्ट लाइसेंसिंग, क्रॉस लाइसेंसिंग। मैं बात कर रहा था नेक्सा और उसकी नेक्सा ब्लेनो की, और उसके साथ टोयोटा के साथ, तो उनकी क्रॉस लाइसेंसिंग हो रखी है। क्रॉस लाइसेंसिंग क्या होती है कि मैं IMT के साथ डील करता हूँ कि मैं आपकी एक टेक यूज करूंगा और आप मेरी एक टेक यूज कर लो। क्रॉस लाइसेंसिंग होगी। डायरेक्ट लाइसेंसिंग होगी कि मैं डायरेक्ट IMT के पास जाता हूँ कि मैं आपका प्रोडक्ट का ये एक पार्ट यूज करूंगा। अब मैं बेसिक एग्जांपल लूं, हम डेल के लैपटॉप्स यूज करते हैं, HP के लैपटॉप्स यूज करते हैं, लेकिन उसमें प्रोसेसर किसका है? ठीक है, प्रोसेसर कौन सा यूज कर रहे हैं? डिफरेंट प्रोसेसर होते हैं। हम कहते हैं हम इंटेल का प्रोसेसर यूज कर रहे हैं, ASUS का प्रोसेसर यूज कर रहे हैं, तो हम उनको रॉयल्टीज देते हैं पर उस पे। ठीक है, ऐसे ही मैं कहूँ, हम गाड़ी की बात करते हैं, गाड़ियों में एयरबैग्स होते हैं। एयरबैग्स को किसने इंट्रोड्यूस किए थे? वॉक्सवैगन ने इंट्रोड्यूस किए थे। आज की डेट में भी जो भी ऑटोमोबाइल सेक्टर में एयरबैग्स इंट्रोड्यूस करता है, वो वॉक्सवैगन को कहीं ना कहीं रॉयल्टीज पे करता है। तो ये मोनेटाइजेशन इफेक्ट रहता है इस पे। बेनिफिट क्या है आईपी के बेनिफिट्स हैं, एक तो आपको रॉयल्टीज मिल रही है, प्रोटेक्शन मिल रहा है, आपको जेन्युइन पार्ट्स से मतलब कि इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। स्पेसिफिकली कमर्शियलाइजेशन में कोई भी बड़ी कंपनी अगर कमर्शियलाइजेशन के लिए आ रही है, पहले वो देखेगी कि आपकी जो इन्वेंशन है, आपका जो प्रोडक्ट है, वो प्रोटेक्टेड है कि नहीं है। अगर मैंने एक एग्जांपल दिया था सुब्रमण्यम नायडू वाला कि बंदे की इन्वेंशन प्रोटेक्टेड थी पेट कॉलर्स पे, तभी एक बड़ी कंपनी रतन टाटा ने उसमें इन्वेस्ट किया। ऐसे ही कोई बड़ी कंपनी अगर इन्वेस्ट करती है, तो वो भी ये चेक करती है कि आपकी जो इन्वेंशन है वो प्रोटेक्टेड है या नहीं। मतलब अगर वो इन्वेस्ट कर रही है, कोई दूसरा बंदा आके इन्फ्रिंजमेंट तो नहीं फाइल कर देगा, इन्फ्रिंजमेंट केस तो नहीं फाइल कर देगा। तो एक प्रोटेक्शन इसलिए जरूरी है। सेकेंडली, एक प्रोडक्ट के अंदर कितनी आईपीस हो सकती हैं? जैसे मैंने एक गाड़ी का एग्जांपल आपको शुरू में ही दे दिया था कि ट्रेडमार्क हो सकता है, इंडस्ट्रियल डिजाइन हो सकता है,
हेडलाइट्स पे पेटेंट हो सकते हैं, पेटेंट पे टायर पे डिजाइन हो सकता है, ऐसे ही जो लोगो है उन पे हो सकता है, वॉशिंग मशीन के डिजाइन पे हो सकता है। इसका कोई एंड नहीं है। आप एन नंबर ऑफ एक प्रोडक्ट पे मल्टीपल आप आईपीज प्रोटेक्ट कर सकते हो। ऐसे ही 2 स्टेट्स की बात करता हूँ, लेआउट्स, आईसी लेआउट्स की बात करता हूँ मैं। एक मोबाइल फोन्स की मैंने बात की थी कि कैसे एक मोबाइल फोन के अंदर कितने कितने आईपीज प्रोटेक्टेड है। आप अपने सराउंडिंग्स में देखो, इतनी आईपीज अवेलेबल हैं, कैसे वर्कआउट कर रही हैं, कैसे नहीं वर्कआउट कर रही। अब बेसिक चैलेंजेस क्या फेस करती है, मतलब इंडस्ट्री, कॉलेजेस वगैरह क्या आ गए। एक तो इन हाउस कुछ नहीं है, इन हाउस हमने कोई सेटअप नहीं किया हुआ, इंडस्ट्री आईपी इंडस्ट्री नहीं सेटअप की हुई, नॉलेज नहीं है। जैसे मैं कह रहा था कि प्रोटोटाइप की बात कर रहा था, सबको लगता है कि प्रोटोटाइप होना जरूरी है, लेकिन मेरे को 10 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, मैंने आज तक कभी नहीं कहा कि प्रोटोटाइप होना जरूरी है किसी भी। मैंने अपने आप में एक 3 पेटेंट फाइल किए हुए, पेटेंट एप्लीकेशन फाइल की हुई हैं। मैंने आज तक वो नहीं दिया, मतलब कि प्रोटोटाइप नहीं दिया। कोई एक्सपर्ट कुछ नहीं है यहाँ पे, मतलब कि कोई आपको गाइड करने वाला नहीं है बेसिकली कि आप अपनी एक आईपी अपने प्रोडक्ट से कितना कमा सकते हैं। कि एक कॉलेज, हम एक कॉलेज के साथ एसोसिएटेड है जिन्होंने अभी हाल ही में सैनिटाइजर्स निकाले हैं आईपी प्रोटेक्ट करके, मास्क निकाले हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सैनिटाइजिंग मशीन्स निकाली है लेटेस्ट। रेगुलेशंस का नहीं पता इंडस्ट्रीज को, स्टार्टअप्स के लिए कितना गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, क्या प्रोवाइड कर रही है वो किसी को नहीं पता, कितनी फंडिंग हो रही है वो नहीं पता। स्टार्टअप्स के लिए गवर्नमेंट कितनी जल्दी अर्ली एग्जामिनेशन प्रोवाइड करवाती है वो नहीं किसी को पता। मतलब एक लैक ऑफ नॉलेज ही है एक तरह से। आपके पास वैसे नॉलेज बहुत है, आपके पास बहुत इन्वेंशन होगी, मतलब इतनी इन्वेंशन होगी क्योंकि आपके पास, अगर आप स्टूडेंट का क्रक्स देखें कितना ज्यादा है, फैकल्टी मेंबर्स देखें कितने क्वालिफाइड हैं, सबके पास कोई ना कोई एक ना दो इन्वेंशन होंगी, ये मैं श्योर हूँ। बट उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है, सबको वहां पे ही डाउट है कि फाइल कैसे करूं। हेजिटेशन है एक चीज की कि मुझे इस बात की नॉलेज नहीं है। बट एक पेटेंट फाइल करना सबसे इजी है, पेटेंट एप्लीकेशन पब्लिश होना सबसे इजी है, कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। बस आपका एक इन्वेंशन, एक आइडिया होना चाहिए कि मैं इस आइडिया पे काम करना चाहता हूँ, कि ये अचीव करवा रहा हूँ। Any questions regarding patent filing, anything? Mr. Jaspreet, can you please explain the meaning of patent valuation? Patent valuation How it is done? Patent valuation is done on the basis of पहले तो आपकी इन्वेंशन किस सेक्टर में, ठीक है, सेक्टर में है, और वैल्यूएशन इस बेसिस पे कि सपोज मैं कहता हूँ मेरा एक सैनिटाइजर है, आज की डेट में सैनिटाइजर्स वगैरह, सैनिटाइजिंग मशीन्स, ठीक है, एवोल्यूशन होगी कि सैनिटाइजिंग मशीन ऑपरेट कैसे करती है, ठीक है। पहले तो ये हो गया, क्या क्या इसमें सिस्टम एलिमेंट्स है, सेकेंड ये हो गया। थर्ड, कि मैंने कौन कौन सी इन्वेंशन इसमें साइट की हुई है, मतलब कौन कौन से रेफरेंसेस पेटेंट साइट किए हुए हैं। मतलब इतनी नॉवल है कि अभी तक कोई इस पे पेटेंट मुझे साइटेड मिला ही, ठीक है। और अगर और कौन कौन से मैंने इस पे, मैं कहूँ क्या कहते हैं, इस पे कौन कौन सी कंपनीज टाई अप है, ठीक है। अब मैं एक एप्पल की छोड़ो, मैं नॉर्मल सिनारियो में बात करूं, जैसे मैं उसकी बात कर रहा था एलईडी पेट कॉलर्स पे, तो वो इन्वेंशन आई कि नॉवल कितनी, कि 4-5 सिस्टम्स मिला के तो नहीं है। सेकेंडली आया कि इसकी जरूरत कितनी है, आज के सिस्टम में इसकी जरूरत कितनी है, ठीक है। और कितने कॉम्पिटिटर्स हैं आज की डेट में इस प्रोडक्ट को लेके, ठीक है। तो ये सारे सब सिनारियोज हैं जो या क्राइटेरियाज हैं जो अगर फुलफिल होते हैं उसके बेसिस पे वैल्यूएशन डिसाइड होती है। कई फॉर्मूलाज होते हैं जिसके बेसिस पे वैल्यूएशन डिसाइड होती है। एक फैक्टर नहीं है, मल्टीपल फैक्टर्स। और आप किस रीजन में डील कर रहे हैं,
किस सेक्टर में डील कर रहे हैं, हेल्थ सेक्टर में डील कर रहे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में डील कर रहे हैं, नीड क्या है आपकी, जो इन्वेंशन है कॉस्ट इफेक्टिव कितनी है, एफिशिएंसी कितनी अचीव हो रही है, ये सब वैल्यूएशन में अफेक्ट करता है। इसके बेसिस पे वैल्यूएशन डिसाइड होती है, ठीक है, कि कितना जो आपका प्रोडक्ट है या इन्वेंशन है कितना कॉस्ट करेगा, इसकी कमर्शियलाइजेशन वैल्यू कितनी है। Suppose you mean to say that in nutshell of the whole session, we can say that suppose if we have to file a patent, then we should have some idea, some innovative idea. And Yes, if we have to go for the commercialization of that patent, then the prototype formation should be must. Yes, exactly. Okay. Exactly. Okay. Thank you. Any questions? Yeah. हेलो। ये सर। हाँ सर, मैं एक्चुअली जैसे हम लोग पीएचडी कर रहे हैं, हम लोग ना पीएचडी स्कॉलर्स हैं, तो जो उसमें हम लोग थीसिस करते हैं अपना, जो हम लोग कर रहे हैं, रिसर्च करेंगे, क्या उसको भी हम पेटेंट करा सकते हैं? जैसे कि हम पेपर पब्लिश करते हैं, वो यूनिक पेपर होता है। पेपर पब्लिश से पहले आप फाइल कर दो उसको, अपनी जो भी आपका रिसर्च पेपर है उसके बाद आप करो, क्योंकि अगर इंडियन पेटेंट लॉ कहता है कि अगर आपने पहले पब्लिश कर दिया तो आप पेटेंट नहीं करवा सकते। ओके, ठीक है। This is the very important point. Like if यूएस कहता है, यूएस में होता है कि आप 6 महीने के अंदर आप पब्लिश करा सकते हो, प्रोटेक्ट करा सकते हो। पब्लिश आपने आज किया तो विद इन 6 मंथ आप करा सकते हो, आपको ग्रेस पीरियड मिलता है। पर इंडिया में आपको ग्रेस पीरियड नहीं मिलता 6 मंथ। ओके, ठीक है सर, थैंक यू। सर एक क्वेश्चन है मेरा सर। यस सर। हाँ जी। सर जब आप डिस्कशन के दौरान आप कई बार आपने जिक्र किया इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स या इलेक्ट्रॉनिक कुछ प्रूफ होना चाहिए, तो क्या मेल्स भी कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रूफ में ट्रीट होते हैं? यस या जो मेल्स पे हम अच्छा yes, ठीक है yes, ठीक है। सर एक ना केस आया था, मतलब कि उसमें ये था कि एक बैंक का केस था, इन्फ्रिंजमेंट केस था। तो जो सिटी बैंक जैसे हो गया, उन्होंने केस किया था अपने क्लाइंट के अगेंस्ट कि हमने इनको कुछ मेल्स की थी, इसके बेसिस पे इन्होंने हमारी मेल्स आगे फॉरवर्ड करके सेल आउट कर। ओके सर, ठीक है, तो वो भी एक डॉक्यूमेंट माना जाता है मेल्स। समझ गया सर, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। जी, एनी अदर क्वेश्चंस? एक क्वेरी मेरी है, अगर मान लीजिए हमें कोई भी रिसर्च आइटम्स, पब्लिकेशन आइटम पेटेंट कराने की जो आप बात कर रहे हैं कि हमने आज फाइल कर दिया पेटेंट के लिए, लेकिन 18 मंथ तक तो उसका एग्जामिनेशन ये सब ही नहीं होता है, और उस बीच पेटेंट फाइल करने के बाद हम उसको अगर पब्लिकेशन के लिए चले गए और पेपर पब्लिश्ड हो गया बिफोर गेट ग्रांटेड फॉर द पेटेंट। सर लेकिन आपके पास प्रोटेक्शन तो पहले की है ना, प्रोटेक्शन आपकी पहले की है ना। हाँ, डेट मैटर करती है। लेकिन पब्लिक डोमेन में लेकिन पेटेंटेबल आइटम पब्लिक डोमेन में तो पहले ही आ गया ना पेटेंट होने से। सर आपने फाइल कब किया उस पे मेन फोकस होता है, डेट ऑफ फाइलिंग। अच्छा, आपकी जो पब्लिकेशन हो गया तो कोई मैटर नहीं। यस, डेट ऑफ पब्लिकेशन इज आफ्टर डेट ऑफ फाइलिंग, सो इट डजंट मैटर। पहले फाइलिंग है, अगर पहले फाइलिंग हो रखी है तो पब्लिश बाद में जो मर्जी होता जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले पब्लिश नहीं होना चाहिए। एनी अदर क्वेश्चंस? Okay. I'm closing the meeting, ma'am. Thank you, madam, and thank you, sir. Okay, thank you very much. Okay. Thank you to all. Yeah. Okay.